गुड आफ्टरनून फ्रेंड। रवि भाई आवाज आ रहा है? यस सर आ रहा है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। I welcome you all on behalf of Jalgaon branch of WRC of ICI. Uh, Today is a big day. Today is Mahavir Jayanti, and Bhagwan Mahavira has given us the lesson of Ahimsa and Kshama. Those are the most powerful weapons that Bhagwan Mahavir has given to us. And if we follow and adopt those weapons, we will be definitely successful in our life. So I wish all a happy Mahavir Jayanti to all my friends, my colleagues, my seniors in the profession. And on behalf of Jalgaon branch of WRC, I welcome you all to a series of workshop and webinars. And we have with us CA Ravindra Patil, who is very well known to us. He is our ITD faculty also and always ready for the CA branch. And today he is going to teach us on the Tally Prime. What are the very important features for the audit in the Prime, and all those things that we don't know. First of all, I will like to introduce CA Ravindra Patil. CA Ravindra Patil is a practicing chartered accountant since 2012. Completed advanced diploma in computer application in 2003. He is a qualified DISA conducted by ICI in 2016. Giving training of Excel since 2007. Faculty of Information Technology training at Jalgaon branch of ICI since 2010, almost from 11 years. Faculty of Information Technology training at Dhule branch of ICI since 2012. Member of Information Technology Committee at Jalgaon branch of WRC of ICI. Delivering lectures and giving training on advanced Excel computer-aided audit tools and Tally in various organizations. Delivering lectures on income tax GST in various organizations. Writing articles for newsletter of Jalgaon branch of WRC of ICI. And also writing blogs on information technology updates and tips. And last but not the least, always ready for the CA branch. So I welcome CA Ravindra Patil sir for this interactive session, and I will request him to start the session. Thank you. Thank you, sir. Thank you for such a nice introduction. I welcome everyone on this Tally Prime batch. I am also new in this Tally Prime and audit in Tally Prime. तो मैं भी सीख रहा हूँ अभी, और जो भी मैंने सीखा है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा, तो प्लीज़ पार्डन मी। सबसे पहले दो चीज़ें। एक, अगर आपको टैली में डायरेक्टली ऑडिट करना है तो टैली में डायरेक्ट वीडियो बंद है। हेलो, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। सब पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपने आप को म्यूट कीजिए। रवि भाई म्यूट किया मैंने उनको, यू कैन कंटिन्यू। ओके, मैंने एक टैली का डेटा लिया है जिसका मैं आपको ऑडिट करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज की तारीख में हम लोग क्या करते हैं कि टैली का डेटा कस्टमर का हमारे पास आता है, उसको जनरली व्हाट वी डू, हम लोग उसको टैली में से एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के बाद जितने वाउचर्स हमें वेरीफाई करने होते हैं, सपोज बैंक वेरिफिकेशन चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, बैंक का जो लेजर है उसको टैली में से एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के बाद उसमें अपन वेरिफिकेशन करते हैं, जैसे कि येलो कलर करना, ग्रीन कलर करना। चेक अगर हमारे पास में चेकबुक है तो चेकबुक पे अमाउंट, डेट, पार्टी का नाम वगैरह सब क्रॉस टैली करके हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे उसको वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप डायरेक्टली टैली में कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली डू दैट इन टैली। बट इसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, आप डायरेक्ट टैली में कर रहे हो तो इसका मतलब वो डेटा अगर वापस चेंज होता है तो जो भी आपने काम किया है वो सब वेस्ट जाएगा। तो इसके लिए आपने अब क्लाइंट प्रीमाइसेस में क्लाइंट के डेटा पे
ऑडिट करना चाहिए, पहली बात। अब अगर आपको क्लाइंट प्रेमाइसेस पे ये डेटा वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए टैली में रिमोट लॉगिन का एक ऑप्शन अवेलेबल है, रिमोट लॉगिन। अगर आप टैली रिमोट लॉगिन करते हो तो ऑनलाइन डेटा पे डायरेक्टली आप काम कर सकते हो। क्लाइंट के कंप्यूटर में सिर्फ डेटा चालू चाहिए, वो भले ही उस पर काम कर रहे हो, चलेगा, नो प्रॉब्लम। उनका भी काम चलेगा, उसी सेम कंपनी में आपका भी काम चलेगा। इसमें 2-3 अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या क्लाइंट के पास मल्टी यूजर होना जरूरी है? तो ऐसा कतई नहीं है, सिंगल यूजर पे भी आप ये कर सकते हो, रिमोट लॉगिन डायरेक्टली। दूसरा, क्या आपके पास वैलिड टीएसएस होना चाहिए? तो आपके पास वैलिड टीएसएस की जरूरत नहीं है, आप एजुकेशनल वर्जन से भी लॉगिन कर सकते हो क्लाइंट के डेटा में। क्या क्लाइंट के पास लीगल वर्जन होना चाहिए एंड अपडेटेड टीएसएस होना चाहिए? तो यस, क्लाइंट के पास टीएसएस अपडेट होना चाहिए। अगर उसको रिमोट लॉगिन एक्सेस देना है आपको, तो उनके पास में टीएसएस अपडेटेड होना चाहिए। अब टीएसएस अपडेटेड है, क्लाइंट के पास टीएसएस अपडेटेड है, अब आपका ईमेल आईडी उसके अंदर डालना चाहिए। तो इसमें भी 2 क्वेश्चन है, क्या आपके पास लीगल टैली होना चाहिए या एजुकेशनल पे भी चलेगा? अगर आपके पास लीगल टैली है, मतलब लाइसेंस वर्जन आपके पास है, और जो लाइसेंस वाला यूजर आईडी है उसका टीएसएस अपडेट चाहिए। अगर लाइसेंस टैली है तो उसका टीएसएस अपडेट चाहिए। अगर लाइसेंस टैली आपके पास में नहीं है, तो आपका कोई भी दूसरा ईमेल आईडी, आपका कोई भी दूसरा ईमेल आईडी एज अ बिजनेस ओनर अपडेट कर सकते हो सामने वाले पार्टी के टैली के अंदर। उनको सिर्फ एक ईमेल जाएगा उनके ईमेल पे, जहां पे उनको एक्सेप्ट करना है कि ये ईमेल आईडी मैं ऑथराइज कर रहा हूँ एज अ रिमोट लॉगिन यूजर। तो ये कैसे करना है मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि हाउ टू ऐड दिस यूजर आईडी। तो चलो मैं पहले मेरा यूजर आईडी वगैरह दिखा देता हूँ आपको। इस कंपनी में मैंने सेट किया हुआ है। जस्ट गो टू यूजर्स एंड पासवर्ड्स, आपको कंपनी ओपन करना है, एडमिन में ये करना है, जैसे tally.net ओनर। ये मेरा ईमेल आईडी है, ये मेरे 2 ईमेल आईडीज हैं। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, सब लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए, सॉरी म्यूट कीजिए, सॉरी म्यूट करना है, अनम्यूट नहीं। हाँ, ये जो मेरा ईमेल आईडी है ऊपर वाला, ये टीएसएस वाला है, और नीचे जो है वो नॉन टीएसएस वाला है। अब अगर आप नॉन टीएसएस वाला, मतलब जो टैली में रजिस्टर्ड नहीं है, उसको ऐड करते हो, तो उससे रिलेटेड, उसका जो रिलेटेड ईमेल है वो आपके ईमेल पे जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैं मेरा एक दूसरा ईमेल आईडी डाल के, तो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। यहाँ मैं एक tally.net ओनर, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ सब चीज़ें। तो अगर आपके पास पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर जो भी है, आप राइट डाउन लिख लीजिए कि स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। अगर ये स्टेप्स आपको याद नहीं रहते या फिर आपने लिखा भी नहीं है, तो यू कैन जस्ट सर्च ऑन गूगल स्टेप बाय स्टेप। सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि क्या सर्च करना है। तो आपको रिमोट लॉगिन सर्च करना है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे बहुत सारे, उसमें से आप ये कर सकते हो। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स प्रैक्टिकली। tally.net ओनर आपने डाला, यहाँ पे न्यू यूजर, मैं एक नया यूजर डालता हूँ, जैसे कि मेरा एक दूसरा ईमेल आईडी है vibranttians, ओके, vibranttians@gmail.com। मैंने ईमेल आईडी डाला, अलाउ ब्राउजर एक्सेस यस, रिमोट एक्सेस यस, एंड अलाउ लोकल टीडीएल यस, मैंने सबको अलाउ कर दिया। प्रेस एंटर। अब वापस से एंटर दबाओ। अब क्या होगा, मेरा जो ईमेल है उसमें एक मेल आएगा। एक सेकंड, शायद ये ईमेल भी वैलिड है। वाइब्रेंट, हाँ, नहीं, उसको शायद मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है,
Let us see again. अब मैंने इस कंपनी में इसको सेट कर दिया है, तो मुझे इसमें रिमोट लॉगिन एक्सेस सेट करना पड़ेगा। गो टू रिमोट एक्सेस, जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्ड। फॉर द टाइम बिंग मैं इसको बंद करता हूँ 2 मिनट और आपको रिमोट लॉगिन करने का दिखाता हूँ। जस्ट मिनट, रिमोट लॉगिन करना सिलेक्ट रिमोट कंपनी, यहाँ पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। मेरा जो ईमेल आईडी है ऑलरेडी डाला हुआ, ravi or excel@gmail.com, tally password, okay, to reset the password. यहाँ पे आपको जितनी भी कंपनीज आपने लोड करके रखी है सब दिखाई देगी। तो चलो मैं यहाँ टैली ओपन करता हूँ। कनेक्ट कंपनी ऑनबोर्डिंग, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। So see here, login as select remote user। यहाँ पे आपकी जितनी भी ऑनलाइन है यहाँ पे दिखाई देती है। इसको कुछ टैली ईआरपी के अंदर यहाँ पे कनेक्टेड ऑप्शन आता था, डायरेक्टली सी लिख के आता। यहाँ प्राइम में पता नहीं चल रहा है। लेट अस सी अगेन हियर, सिलेक्ट रिमोट कंपनी नॉट अपीयरिंग हियर, यहाँ पे अपीयर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक आपकी कंपनी रिमोट लॉगिन में यहाँ पे आकर आपको दिखाई दे तो उसके बाद आप डायरेक्टली उसके कंप्यूटर में काम कर सकते हो। अब हम जाते हैं ऑडिट के तरफ। ये अभी काम नहीं कर रहा है तो मैं इसका ढूंढ के आपको बताता हूँ। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, ऑडिट आपको जहाँ पे करना है वो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में है। अब यहाँ पे अभी एक रिसेंट नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट का आया था कि सभी कंपनीज को ऑडिट ट्रेल टैली में मेंटेन करना है। समवॉट टैली के अंदर ऑडिट ट्रेल ऑलरेडी अवेलेबल है कि किसने वाउचर बनाया, किसने अल्टर किया, किसने डिलीट किया, किसने कैंसिल किया। इस सभी लॉग्स टैली एज इट इज, वो टैली उसके अंदर रखता है।
अब टैली प्राइम में और टैली ईआरपी में दोनों में अवेलेबल है। आपको सिर्फ क्या करना होता है, जब आप कंपनी क्रिएट करते हो तो कंपनी क्रिएट करते समय ऑडिट फीचर एनेबल करना होता है। तो कंपनी में, आपके क्लाइंट की कंपनी में आपने देखना चाहिए, मैं इसको अल्टर कर रहा हूँ। अल्टर करते समय यहाँ पे एनेबल टैली ऑडिट फीचर, इसको यस करना जरूरी है। इसको अगर आपने यस नहीं किया है तो ये फीचर अवेलेबल नहीं होता है, तो इसको यस कीजिए सबसे पहले। उसके बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, टैली प्राइम के अंदर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, ये एक नया ऑप्शन उन्होंने लाया हुआ है। ये टैली ईआरपी में भी था लेकिन इतना ज़्यादा उसमें डिटेल्स में नहीं था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स रेडी अवेलेबल है। एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, इसमें दो वेरिफिकेशन है, एक है डेटा एनालिसिस और एक है वाउचर वेरिफिकेशन। डेटा एनालिसिस में जब आप जाते हो तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। अब मैं आपको एक एक करके ऑप्शंस में क्या है, कैसे काम करता है उसको बताऊंगा। पहला है वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट। ये वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स में क्या है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग लेजर्स जो है उसका एनालिसिस मिलता है कि आपके कंपनी में अकाउंट स्क्वायर ऑफ ड्यूरिंग द ईयर कितने हैं, इस साल में कितने अकाउंट स्क्वायर ऑफ हो गए जिसमें ट्रांजेक्शन थे या इधर डेबिट और क्रेडिट हो गए और ट्रांजेक्शन नील करके क्लोजिंग बैलेंस हो गए। नॉट यूज, आपने टैली में अकाउंट बना के रखे हैं लेकिन यूज ही नहीं किए, ऐसे कितने अकाउंट। उसके बाद ओनली बैलेंसेस विदाउट एनी ट्रांजेक्शन, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है, ऐसे कितने लेजर्स आपके पास में है। इन लेजर्स को आप अलग अलग टाइप में सेटिंग कर सकते हो बाय प्रेसिंग फॉर ग्रुप। अगर आपको ग्रुप में चाहिए तो आप ग्रुप में देख सकते हो कि जैसे अनसिक्योर्ड लोन्स कुछ है क्या जिनको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। फॉर लोन्स एंड एडवांसेस में कुछ है क्या, तो लोन्स एंड एडवांसेस में आप देख सकते हो, आपको पता चलेगा कि लोन्स एंड एडवांसेस में इतने सारे एडवांसेस लास्ट ईयर में भी थे, इस ईयर में भी ऐसे की वैसे ही। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो बाजू में एक कॉलम और आ रहा है लास्ट ईयर का, ये 20-21 कॉलम है, 19-20 का कॉलम है। तो आप दो कंपनी एक साथ में कंपेयर भी कर सकते हो, पिछले साल का डेटा इस साल में कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपने सिर्फ करंट ईयर की कंपनी ओपन की है तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। अकाउंट स्क्वायर्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, नॉट यूज, ओनली बैलेंसेस विदाउट एनी ट्रांजेक्शन एंड यूज्ड ओनली इन करंट ईयर, सिर्फ करंट ईयर में इस्तेमाल हुआ है, पिछले साल में उसमें ओपनिंग बैलेंस वगैरह नहीं था। तो लेट अस ऐड अ कंपनी हियर, एक कंपनी हम ऐड करते हैं इसमें, कंपेयर कंपनी 1920। जब आप यहाँ पे आपके सामने डायरेक्टली ऑप्शन अवेलेबल होता है कंपेयर कंपनी। अगर आपकी कंपनी कंटिन्यूअस में है, अगर आपकी कंपनी कंटिन्यूअस है जैसे कि 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 कंटिन्यूअस है तो ये बाजू वाला कॉलम ऑटोमेटिकली आ जाता है। बट अगर आपकी कंपनी कंटिन्यूअस नहीं है तो आपको कंपेयर कंपनी क्लिक करके दूसरी वाली कंपनी सिलेक्ट करनी पड़ती है। अब यहाँ पे एडिशनल ऑप्शन आ जाते हैं। अकाउंट स्क्वायर्ड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, अब ये सिर्फ 6 बच गए। नॉट अवेलेबल इन करंट ईयर, पिछले साल में थे लेकिन इस साल में नहीं है, ऐसे लेजर्स। उसके बाद नॉट यूज, इसमें और एक चीज होती है, यहाँ पे जब आप डायरेक्टली ओपन करते हो सिर्फ एक्सेप्शनल रिपोर्ट दिखाई देते हैं। जब आप डायरेक्ट ओपन करते हो सिर्फ एक्सेप्शन रिपोर्ट दिखाई देते हैं। इफ यू वांट ऑल आइटम्स तो सिलेक्ट ऑल आइटम्स, F12 दबा के आपको ऑल आइटम क्लिक करना जरूरी है। तो ऑल आइटम्स कीजिए तो सभी आइटम्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ऑल आइटम्स। नो चेंज, 96 ऐसे लेजर है जिनके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। देन नॉट अवेलेबल करंट ईयर, ये 4 लेजर करंट ईयर में नहीं है। उसके बाद नॉट यूज, ओपनिंग बैलेंस है, ऐसे लेजर जो इस साल में और पिछले साल में इस्तेमाल ही नहीं हुए, आपने बना के तो रखे हैं लेकिन इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुए। नॉट यूज इन करंट ईयर, पिछले साल में इस्तेमाल किए थे लेकिन ये साल में कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे लेजर। ओनली ओपनिंग, ओनली बैलेंस लास्ट ईयर एंड यूज इन करंट ईयर, इसमें ओपनिंग बैलेंस है और इस साल में आइदर वो नील हो गए हैं या फिर उनमें सिर्फ बैलेंस बचा हुआ है। ओनली बैलेंसेस, नो ट्रांजेक्शन, ऐसे लेजर जिसमें सिर्फ ओपनिंग बैलेंस है और कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो दीज आर वेरी गुड फीचर
आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे कि कौन से ऐसे बैलेंस लेजर्स है जिनमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। और हर जगह पे आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप ग्रुप वाइज इसको चेक कर सको। यू कैन चेक इट ग्रुप वाइज। जैसे सपोज अपने को देना है पार्टी को कि पिछले साल में भी कुछ ट्रांजेक्शन नहीं था, इस साल में भी कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है डेटर्स क्रेडिटर्स की लिस्ट, तो यू कैन चेक दिस वन। ओनली बैलेंसेस लास्ट ईयर, ओनली बैलेंसेस नो ट्रांजेक्शन, यू कैन गो टू द फॉर ग्रुप में जाके सैलरी डेटर्स सिलेक्ट कीजिए। आपको डेटर्स में ये 3 लेजर दिखाई देंगे जिनमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। आप क्लाइंट को ये रिपोर्ट निकाल के दे सकते हो और बोल सकते हो कि इसको आप चेक कीजिए क्या प्रॉब्लम है, या फिर कंफर्मेशन दीजिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स में भी ऐसे क्रेडिटर्स जिनमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। यू कैन गो टू द अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन ऐसे जिनमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। गेट डिफरेंट options here. Also, you can check it ledger wise. आप इसको लेजर वाइज भी चेक कर सकते हो। तो लेजर वाइज में क्या होता है कि A to Z में आपको सब लेजर्स दिखाई देते हैं, A to Z में दिखाई देते हैं, और उसके साथ में आपको नेम ऑफ द ग्रुप दिखाई देता है, उसका स्टेटस क्या है, डेट फर्स्ट एंट्री, डेट ऑफ द फर्स्ट एंट्री एंड बैलेंसेस वगैरह जो भी रहेगा। दिस वे यू कैन चेक द लेजर्स। अब सपोज आपने ये आदित्य कार वाले का लेजर चेक कर लिया, आपके पास में कंफर्मेशन पार्टी ने भेजा था, आपने चेक कर लिया, जस्ट प्रेस एंटर। ये आपको बताएगा वेरिफिकेशन डिटेल्स, इज इट वेरीफाइड और ऑन होल्ड। तो वेरीफाइड बोलिए, वेरिफिकेशन में डाल दीजिए ओके वेरीफाइड, ओके वेरीफाइड। इस तरीके से आप लेजर्स वेरिफिकेशन भी कर सकते हो इसके अंदर डायरेक्टली। दिस इज अवेलेबल इन वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट्स, वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट। जैसे सपोज यहाँ पे रीग्रुप्ड भी है, तो पिछले साल में क्रेडिटर्स में थे, सॉरी डेटर्स में थे, इस साल में क्रेडिटर्स में आ गए, देन रीग्रुप्ड, इसको रीग्रुप किया गया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर ग्रुप। So this way you can get different scenarios in this report. Used only in current year. ये सिर्फ करंट ईयर में इस्तेमाल किए गए लेजर्स है, और यहाँ पे फर्स्ट वाउचर को दिखाई देता है। अगर आप इसका स्टेटस सेट करना चाहते हो किसी पर्टिकुलर लेजर का, जैसे कि ये 30,000 वाला है, आपने चेक कर लिया, उसको क्या करना है, आपको स्पेस दबाना है। जो भी लेजर आप वेरिफिकेशन कर रहे हो, वट एवर लेजर यू आर वेरीफाइंग, यू जस्ट हैव टू स्पेस देयर, और स्पेस राइट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा वेरी, जस्ट प्रेस वेरीफाई, तो कीजिए वेरीफाइड और वेरिफिकेशन नोट ओके, और व्हाट एवर इट मे बी, ओके वेरीफाइड टेस्टेड, या फिर आप डायरेक्टली इसमें लिख सकते हो बैलेंस एज पर स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट के हिसाब से जो बैलेंस है। दिस इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अगर आप उनको समझा दो कि जो भी पार्टीज का आप बैलेंसेस क्रॉस टैली कर रहे हो स्टेटमेंट के हिसाब से, यहाँ पे आपको सिर्फ करना क्या है, स्टेटमेंट के हिसाब से बैलेंस लिख के रखना है, जो बैलेंसेस आपके पास में जब आएगा, आप सिर्फ उसका रिपोर्ट निकालो तो आपको पता चल जाएगा वेरिफिकेशन स्टेटस वेरीफाइड। कैपिटल करके आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। तो इसमें ऑल आइटम, यहाँ पे शो वेरिफिकेशन नोट से यस एंड ऑन होल्ड, ऑन होल्ड या फिर अल्टरनेटिव वेरीफाइड, वेरीफाइड वाला बोलेंगे आप तो वेरीफाइड वाले का लिस्ट को दिखाई देगा। ऑल आइटम्स शो नेम ग्रुप वेरीफाइड आइटम। लेजर वाइज करते हैं हम लोग इसको। जब आप लेजर वाइज करेंगे तो यहाँ पे आपको वेरीफाइड का ऑप्शन दिखाई देता है। तो वेरीफाइड वाले सिर्फ एक जगह पे चाहिए होंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन है बट नॉट वर्किंग हियर नाउ। यहाँ पे वेरीफाइड करने के बाद सिर्फ लेजर विद वेरिफिकेशन स्टेटस एज यस, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन वाले लेजर दिखाई देते, अभी नहीं दिखाई दे रहा है। लेट अस चेक ऑन होल्ड। अगर कुछ रिपोर्ट आपने ऑन होल्ड रखे हैं, जैसे कि अकाउंट स्क्वायर्ड ऑफ से काउंटर कस्टमर, इसको आपने ऑन होल्ड रखा, बाद में चेक करेंगे। रिक्वायर एडिशनल डिटेल्स, हमने नोट डाला रिक्वायर एडिशनल डिटेल्स, ये क्या चीज है हमें नहीं समझ में आ रहा, तो जस्ट पुट दिस ऑन होल्ड
कुणाल कंस्ट्रक्शन, इसको भी ऑन होल्ड कर लेते, बैलेंस नॉट टैली, अज्यूमिंग कि इसका बैलेंस टैली नहीं है तो बैलेंस नॉट। जब आप इसका रिपोर्ट देखेंगे तो जस्ट प्रेस F12 ऑल आइटम एंड क्लिक ऑन होल्ड, तो ये ऑन होल्ड की लिस्ट आपको दिखाई देगी। ऑन होल्ड की लिस्ट आ रही है लेकिन इसकी लिस्ट नहीं आ रही है, तो ये टैली को बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको डायरेक्टली रिपोर्ट आ जाता है कि कहाँ कहाँ पे ऑन होल्ड है। तो ये ऑन होल्ड की लिस्ट आपको सिर्फ क्लाइंट को सेंड करनी है कि यहाँ पे हमें डाउट है, यू हैव टू गिव एडिशनल डिटेल्स। यहाँ पे तो नीचे वेरिफिकेशन नोट लिख के आता है, रिक्वायर एडिशनल डिटेल्स, बैलेंस नॉट टैली। जो हम क्वेरीज एक्सेल में या फिर राइट डाउन करते हैं पेपर पे क्वेरीज लिखते हैं और फिर पार्टी को भेजते हैं, तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उनको बोल दीजिए कि यहाँ पे मैंने, आपको सिर्फ चेक करना है, तो ये चेक कर लेंगे। यहाँ पे ऑन होल्ड जितने भी आएंगे वो चेक कर लेंगे ऑन होल्ड वाले। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लेजर वाइज डिटेल्स अवेलेबल है, यू हैव लेजर वाइज डिटेल्स, जहाँ पे आप डिफरेंट थिंग्स चेक कर सकते हो। लेजर, नॉन रेवेन्यू, रेवेन्यू लेजर, इफ यू वांट टू चेक ओनली रेवेन्यू लेजर्स आप चेक कर सकते हो। इफ यू वांट टू चेक ओनली नॉन रेवेन्यू लेजर्स, देन सिर्फ नॉन रेवेन्यू लेजर्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो दिस इज द ब्यूटीफुल पिक्चर। तो आप यहाँ से जो भी वाउचर्स चेक करेंगे, जस्ट पुट एंटर, जिसको भी आपको चेक करना है एंटर दबाओ और वेरीफाइड का ऑप्शन डाल दो। अगर आपको एक साथ 4, 5, 6 वेरीफाई करने हैं तो सबको स्पेस दबा के सिलेक्ट कर लो। अगर आपको 4, 5 एक साथ करने हैं, जैसे कि सपोज प्रोविजंस का ग्रुप आपको चेक करना है, जस्ट प्रेस F4 डाल के प्रोविजंस में चले जाओ। ये सभी प्रोविजंस आपकी आ गई। अब आपने चेक कर लिया कि यार सभी प्रोविजंस आ गई क्या बराबर। अभी ये अकाउंट चार्जेस का लेजर अपना यहाँ से डायरेक्टली लेजर आपको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, F8 दबाएंगे। तो जैसे आप F8 दबाएंगे तो पूरा लेजर ओपन हो जाएगा। ये लेजर ओपन होने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन हम लेजर में देखते हैं, डिस्प्ले अकाउंट लेजर में जाके F12 दबा के जो ऑप्शन आपको अवेलेबल है, ऑल ऑप्शंस आर अवेलेबल है, जस्ट प्रेस यस। तो आपको सभी ऑप्शन, नरेशंस वगैरह सब चीजें आ जाती है। प्रेस एस्केप। अगर आपको इसको एक्सेप्ट करना है तो जस्ट प्रेस एंटर। अगर सबको एक साथ में वेरीफाई करना है तो सबको सिलेक्ट कीजिए पेज दबा के, सिलेक्ट ऑल एंड जस्ट प्रेस हियर वेरीफाई। आपको वेरीफाई करना अंडर आर दबा के और लिखना है वेरीफाई। तो आप ग्रुप ऐसे वेरीफाई करते हो, ऑल आर वेरीफाइड नाउ। यहाँ पे सभी वेरीफाई हो गए। वैसे ही सपोज क्रेडिटर्स आप चेक कर रहे हो, नाउ यू आर चेकिंग क्रेडिटर्स। या फिर फिक्स एसेट चेक कर रहे हो, प्रेस 4, गो टू फिक्स एसेट। फिक्स एसेट सभी लेजर्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ऑल लेजर्स विल बी अपीयर हियर। जस्ट प्रेस सिलेक्ट ऑन, यहाँ पे स्टेटस भी दिखाई देता है, ओनली ओपनिंग बैलेंस, नो ट्रांजेक्शन। अब आपको चाहिए कि जैसे ये बजाज डिस्कवर है, नो चेंज बोला है, मतलब ओपनिंग बैलेंस है, कुछ भी चेंज नहीं है। जस्ट ये हियर ऑन होल्ड, यहाँ पे लिखिए डिप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड। तो पता चल जाएगा कि डिप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया है। जैसे एंटर करेंगे दिखेगा उसको, या फिर शिफ्ट एंटर जब दिखेगा वो डिटेल में तो उसको पता चल जाएगा कि ऑन होल्ड है और उसको डिप्रेस किया है। ऐसे ही आपको सब मुझे 4, 5, 6 सबको ऑन होल्ड करने हैं तो वेरीफाई पे जाइए, ऑन होल्ड, डिप्रिसिएशन पेंडिंग। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। आप जब आप रिपोर्ट आप सामने वाले को बोलेंगे कि आपको सिर्फ टैली ऑडिट फीचर में जाके चेक करना है, या फिर आप यहाँ पे F12 दबाइए, शो ऑल, यहाँ पे नोट यस करके ऑन होल्ड को यस कीजिए। ऑन होल्ड के सभी आइटम्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करो, उसको सेंड कर दो पार्टी को तुरंत मिल जाएगा। आपको राइटिंग एक्सेल में लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो एक्सेल में क्या करना पड़ता है, या फिर पेपर पे हमें लिखना पड़ता है फिक्स एसेट, फिर बजाज डिस्कवर डिप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड, बजाज पल्सर डिप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड, बोलेरो डिप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड। दैट कैन हैपन इन अ सिंगल क्लिक, वो एक ही क्लिक पे हो सकता है। यहाँ पे सभी ग्रुप्स आपको दिखाई देते हैं, वो ग्रुप्स में जा सकते हो, यू कैन गो टू दैट ऑल ग्रुप्स। ओके, तो दिस इज चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप जा सकते हो। अभी चार्ट ऑफ अकाउंट्स में और एडिशनल क्या कर सकते हो आप, जैसे आप किसी पर्टिकुलर लेजर में गए, तो ये लेजर है और मैं एक बैंक के लेजर में जाता हूँ, दिस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर मुझे चेक करना है तो डायरेक्टली वहां से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप F8 दबाना है, इसके ऊपर आपको प्रेस करना है शो लेजर। तो जैसे ही लेजर आपको दिखाई देगा आप उसमें जाके उसको चेंज कर सकते हो। चेंज करंट ईयर, यहाँ पे सिलेक्ट द लेजर, शो लेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक सेकेंड, लेट अस गो टू द ग्रुप बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में नॉट अवेलेबल इन करंट ईयर में है वो। नाउ टेक दिस वन एंड प्रेस एंटर। ओके, जो करंट ईयर में ट्रांजेक्शन हुई है उसी बैंक में आप जा सकते हो, लेजर देख सकते हो, अदरवाइज उसका लेजर नहीं देख सकते। जहाँ पे वो दिखाएगा कि अवेलेबल इन करंट ईयर, जहाँ पे नॉट अवेलेबल इन करंट ईयर है उसके लेजर ओपन नहीं होते। ध्यान रखना, जो ओनली बैलेंसेस ये लेजर हो गया और ओनली करंट ईयर। तो स्टेट ऑफ इंडिया 770 गो टू शो लेजर। तो जैसे ही लेजर आएगा, इस लेजर के ट्रांजेक्शन आप डायरेक्ट यहाँ से वेरिफिकेशन कर सकते हो। यू कैन वेरीफाई दिस लेजर डायरेक्ट फ्रॉम हियर। तो जैसे कि आपके पास में ये एंट्री आपने क्रॉस ये 5 एंट्रीज आपने चेक कर लिया है, ऑल करेक्ट। गो टू वेरीफाई, जस्ट गो टू वेरीफाई एंड से वेरीफाइड, वेरीफाइड। ओके, तो यहाँ पे स्टेटस में आ जाएगा वेरीफाइड, इनवैलिड प्राइमरी स्पेसिफिकेशन। ये हो गए वेरीफाइड। ओके, अब ये 4-5 नीचे वाले हैं जिनको ऑन होल्ड पे रखा है, या फिर चेक है जो चेक नंबर गलत हो गया। अज्यूमिंग कि दिस पेमेंट 1,73,000 का जो पेमेंट है 166 गलत हो गया, 4 तारीख को चाहिए था, 5 तारीख को रिकॉर्ड हो गया। तो उसको वेरीफाई में जाइए और इसको बोलिए इंटरनल ऑब्जर्वेशन ऑन। पाँच 4 इंस्टेड ऑफ 4-4। ओके, अब ये आपको प्रायोरिटी क्या है इसका, सॉल्यूशन का प्रायोरिटी हाई, लो, मीडियम, मेक इट हाई प्रायोरिटी। इंटरनल ऑब्जर्वेशन है और हाई प्रायोरिटी पे हमने डाला है। तो क्या होगा कि जब आप देखेंगे तो उसको आपको तुरंत वो दिखाई देगा कि कौन से प्रायोरिटी पे है और वो सॉल्व कब करना है। इस तरीके से आप एक एक लेजर, एक एक वाउचर या फिर 4-5-6 वाउचर जो भी आपको चाहिए वो आप फटाफट चेक करके आगे बढ़ सकते हो। तो आपका जो स्टाफ है उसको बहुत ईजी जाएगा चेक करने के लिए। यहाँ पे F12 दबा के आप शो नरेशन यस कर सकते हो। इसको डिटेल में चाहिए होगी तो डिटेल, बिल वाइज डिटेल चाहिए होगा बिल वाइज डिटेल, मोड ऑफ पेमेंट, कॉस्ट सेंटर डिटेल्स, शो एंटर्ड एंड अल्टर्ड बाय भी आपको दिखाई देता है, एंड डिफॉल्ट सॉर्टिंग मेथड, शो रनिंग बैलेंस अगर आपको चाहिए होगा तो रनिंग बैलेंस भी दिखाएगा। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देती है, सो दैट यू कैन वेरीफाई इट इन दिस टैली एक्सेल। टैली के अंदर डायरेक्टली वेरिफिकेशन हो सके। इसको आपको करना है कंट्रोल ए या फिर एस्केप। एस्केप दबा के आप बाहर आ जाओ। जब आप उसके एंटर F8 दबा के अंदर जाएंगे तो आपने वेरिफिकेशन स्टेटस डाला था वो वैसे ही रहेगा, वो गायब नहीं होगा। तो दिस इज चार्ट ऑफ अकाउंट्स, दिखाई देता है सभी डिटेल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इज वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम। तो सिमिलर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जैसे था, दिस इज रिगार्डिंग लेजर्स। ये जो है लेजर्स से रिलेटेड है। ये वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम ये रिलेटेड है आपके स्टॉक से। तो डिफरेंस स्टॉक आइटम, तो ये डिफरेंस बताएगा कि आपको ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस कौन से स्टॉक आइटम में कि लास्ट ईयर में नहीं थे, इस साल में आपने डाला हुआ। उसके बाद में अवेलेबल इन करंट ईयर। करंट ईयर में सिर्फ 2 आइटम्स कौन से हैं, दीज आइटम्स आर अवेलेबल ओनली इन करंट ईयर बट नॉट अवेलेबल इन लास्ट ईयर। नॉट यूज, ऐसे कौन से आइटम है जो बनाए हैं आपने लेकिन इस्तेमाल नहीं किए हैं। नॉट यूज इन करंट ईयर, लास्ट ईयर में थे लेकिन इस्तेमाल ही नहीं किया है, ऐसे लेजर। इन करंट ईयर में जो भी इस्तेमाल किया है, अब इसको आप सिलेक्ट करके वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपके पास में फिजिकल वेरिफिकेशन का नोट है, सपोज कंपनी ने फिजिकल वेरिफिकेशन करके रखा है, आपको सिर्फ जाना है स्टॉक आइटम वाइज, ये स्टॉक आइटम वाइज आ जाएगा।
वगैरह आपको दिखाई देंगे। अब जैसे सपोज ये 1000 लीटर्स 4 लेयर टैंक है, इसका बैलेंस आपका बराबर टैली हो गया है। जस्ट क्लिक वेरीफाइड टैलीड एज पर फिजिकल स्टेटमेंट। ये वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। इसको ऑन होल्ड रखना है कि टैली नहीं हो रहा है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे ऑन होल्ड नॉट टैली एज पर रिपोर्ट, नॉट टैली एज पर रिपोर्ट। इसको आप ऑन होल्ड पे रख सकते हो। और इतने भी ऐसे ऑन होल्ड का लिस्ट है, जैसे सपोज इसको भी अपन कर लेते हैं ऑन होल्ड, और एक आइटम को कर लेते हैं ऑन होल्ड, डिफरेंस इन स्टॉक आइटम, दोनों को कर लेते हैं ऑन होल्ड। प्रेस अल्टर आर दबाना है आपको, से ऑन होल्ड इस नोट में आपको डालना है ऑन होल्ड नॉट टैली, नॉट स्टॉक आइटम के आपकी हो गई चेक। सपोज 10, 15, 20 जो भी आपने सैंपल करके रखना था, अगर आप चाहते हो इसको पूरे के पूरे सब एक साथ चेक करना है, आप सब एक साथ में कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि स्टॉक ग्रुप के अंदर चेक करना है 1 बाय 1, तो जैसे कि सपोज आपको सीमेंट के ग्रुप में चेक करना है, तो यू कैन ओपन सीमेंट ग्रुप। सीमेंट ग्रुप में आपको दिखाई देगा क्या क्या प्रॉब्लम्स है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो नहीं लग रहा है कोई। 92, 92 to 13, 13 to 2, there is no difference, but tally is assuming that there is a difference. ऐसा लग रहा है उसको कि डिफरेंस है, बट देयर इज नो। F12 दबा के आप इसमें जा सकते हो निगेटिव स्टॉक आइटम, इसके अंदर कोई निगेटिव स्टॉक आइटम नहीं क्या। और F12 में क्या क्या चीजें, ऑल एक्सेप्शन, सभी एक्सेप्शनल आइटम्स यहाँ पे दिखाई देंगी। F12 में डिफरेंस इन स्टॉक निगेटिव, नो चेंज, नॉट अवेलेबल, तो नाम देखना। और if you yes, keep on hold वाले आइटम पॉइंट ऑफ स्टॉक वेरिएशन के लिए आपके वेरिफिकेशन के हो। अगर आपके पास इस तरीके से टैली में आप देखते हो तो आपको रिपोर्ट तुरंत सकते हो, यू कैन क्रिएट रिपोर्ट ऑटोमेटिकली। डेली नेगेटिव स्टॉक अगर आप देखोगे तो कोई पर्टिकुलर दिन को अगर स्टॉक नेगेटिव है तो आपको इसमें दिखाई देगा डेली नेगेटिव स्टॉक। क्लिक ऑन डिफॉल्ट डेली नेगेटिव स्टॉक। ये रिपोर्ट जो है डेली नेगेटिव स्टॉक वाला, अगर इनको नेगेटिव कोई भी लेजर में तो वो वहाँ पे दिखाई देता है। तो चेक करने वाले हो, अभी आपको उसको रिमूव करना है। कैन रिमूव द वेरिफिकेशन, जस्ट क्लिक रिमूव वेरिफिकेशन, रिमूव हो जाएगा, डिफॉल्ट पे आ जाएगा, वेरिफिकेशन रिमूव हो जाएगा। तो इस शो स्टॉक आइटम, अगर आप शो स्टॉक आइटम करोगे तो उसके अंदर के सभी वाउचर्स दिखाई देंगे आपको। किसी पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट करते हैं हम लोग, क्लिक ऑन इफेक्ट, तो शो स्टॉक आइटम, उसमें जो भी खरीदी बिक्री हुई है स्टार्टिंग से एंड तक सभी, मतलब स्टॉक लेजर हो गया आपका। जैसे अपना अकाउंटिंग का लेजर होता है वैसे ही स्टॉक लेजर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यू कैन चेक 1 बाय 1, एक एक करके आप एंट्री चेक कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो, जैसे हम लेजर में करते हैं वैसे ही। यू कैन हैव सैंपल ऑल्सो, इसका आप सैंपल सेट कर सकते हो। जैसे कि सपोज ये आपको 4 जब आप वॉचिंग करेंगे तो वॉचिंग में आपको मैनुअल सैंपल में दिखाई देंगे और यू कैन सैंपल, यू कैन चेक इट। तो इस तरीके से आपको ये ऑप्शंस आते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम्स, देन वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस। यहाँ पे देखो ओपनिंग स्टॉक चेक करने में अपने स्टाफ का लगभग आधा दिन निकल जाता है। तो सामने वाली पार्टी टैली का डेटा बेच क्या करती है, ऑडिट रिपोर्ट, लास्ट ईयर का जो ऑडिट रिपोर्ट है वो
स्टाफ को देते हैं और स्टाफ को बोलते हैं कि इसको चेक करो। तो अगर आप यहाँ पे एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन इस्तेमाल कर रहे हो तो लास्ट ईयर का फाइनल किया हुआ टैली डेटा अपने पास में जनरली रहता है। तो आपको करना क्या है, जो पार्टी ने टैली का डेटा आपके पास में भेजा है उसको टैली में प्राइम में ओपन कीजिए। प्राइम में उसमें ओपन करने के बाद कंपेयर में जाइए, कंपनी ओपन कर लीजिए। रेड, यहाँ पे रेड आइटम से दैट आइटम्स आर नॉट मैचिंग, तो वो सब डिफरेंसेस में आ जाएंगे। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, लेजर का नाम चेंज हुआ है, लेजर नेम चेंज हेंस द बैलेंस इज डिफरेंस। तो ऐसा आपको सभी जगह जहाँ डिफरेंस रहेगा वो सब दिखाई देंगे कि अंबुजा सीमेंट लिमिटेड यहाँ पे फर्क पड़ा है। तो रेड कलर में जो दिखाई देंगे वो ऑल आर डिफरेंसेस। यहाँ पे क्रॉस टैली भी हो सकता है अगर डिफरेंस आपका 0 हो गया है। तो इस तरीके से आपको ओपनिंग बैलेंस से डिफरेंस, द क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 एंड ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 31 अप्रैल 2020 दोनों को कंपेयर करता है लेजर वाइज। यहाँ पे सिर्फ दिक्कत क्या होती है, सबसे इम्पोर्टेंट दिक्कत, अगर लेजर के नाम में चेंज है, अगर लेजर के नाम में चेंज है तो दोनों को डिफरेंस में दिखाता है। नाम दिखाता है। लेजर का आपने क्लासिफिकेशन भी चेंज किया है। जैसे ये लास्ट ईयर अंबुजा सीमेंट यहाँ पे था, कहाँ पे डेटर्स में था, अभी अगर नाम सेम है सिर्फ ग्रुप अलग अलग है तो आपको यहाँ पे F5 पे क्लिक करना है लेजर वाइज। तो जब आप लेजर वाइज करते हो, जब आप लेजर निकाल देते हो तो वहां पे जो डिफरेंस दिख रहा था निकल जाता है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, अब यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा था 3038 में, अभी वो डिफरेंस नहीं दिख रहा है। उनका डिफरेंस आपको दिखाई देगा और जिन है वो डिफरेंस आपको वैसे के वैसे ही दिखाई देगा। In this way, you can have a different type of differences there. But इसमें क्या है, closing balances of profit and loss के आइटम ये भी आपको यहाँ पे डिफरेंस में आ जाते हैं अगर ग्रुप लेजर वाइज जाएंगे तो, क्योंकि ग्रुप वाइज में क्या होता है वो सब नीचे रहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम, तो इसकी वजह से अपने को दिक्कत नहीं होती है। बट यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अब जब आप इसको बैलेंस बनाने पे क्लिक करेंगे आपके बैलेंस भी दिखाएगा। लास्ट ईयर में क्लोजिंग बैलेंस के, इस साल क्लोजिंग बैलेंस और उसके अंदर चेंज कितना हुआ है, हाउ मच चेंज इज देयर। जो नेगेटिव चेंज है मतलब जो कम हुआ है माइनस में दिखाई देगा, जो बड़ा है अमाउंट वो प्लस में दिखाई देगा। तो दिस इज बैलेंस वैरिएंस। अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर मेजर में बहुत ज्यादा चेंज हुआ है तो आप उसको स्पेसिफिकली चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो कोरिएंट सीमेंट का 153% चेंज है, तो यू कैन चेंज डायरेक्टली इसको। यहाँ पे इस तरीके से आप उसको एक एक मेजर को चेक कर सकते हो कितना चेंज हुआ है। TDS रिसीवेबल 134% वेरिएशन, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको वेरिएशन दिखाई देते हैं। लेजर का पिछले साल के साथ में कंपेयर करके वो डिफरेंस दिखेगा। अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो लेजर का अमाउंट इंक्रीज हुआ है, और अगर वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब उस लेजर की वैल्यू कम हुई है। यहाँ पे ये कहाँ पे दिस वन बैलेंस वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस में, वेरिफिकेशन ऑफ बैलेंसेस में आपको सभी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस कंपैरिजन मिलेगा, साथ में बैलेंस वैरिएंस मिलेगा। क्लिक ऑन ग्रुप वाइज, तो ग्रुप वाइज बैलेंस वैरिएंस आपको मिलेगा, कौन से ग्रुप में कितना चेंज हुआ है। जैसे करंट लायबिलिटीज हमारा 105% मतलब लगभग डबल हो चुका है, तो साथ में लोन्स 10% से बढ़े हुए हैं, कैपिटल 1% से कम हुआ है, इन्वेस्टमेंट 14% से कम ही है। यहाँ पे अगर आप इनडायरेक्ट इनकम तो इट इज 96% कम, इस साल में 96% कम इनडायरेक्ट कमाई है हमारे पास, और 5% से हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लास्ट ईयर कम में आपको फटाफट डिटेल्स दे देता है, तो आपको रवि भाई, हाँ रवि भाई अगर किसी को कोई क्यूरी होगी तो they can raise hand or can post in the chat box also. ओके, हाँ जरूर, जिसको भी क्वेरी होगी यू कैन आस्क डायरेक्टली।
directly. In between also you can ask. You can just say कि sir I have query, तो आपकी query ली जाएगी तुरंत. Okay, so this is a very beautiful feature. ये आपका हर आपके लगभग 3 से 4 घंटे बचाएगा हर इन एवरी कंपनी. ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस वेरिफिकेशन आप मैन्युअली करने की जरूरत ही नहीं है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस वेरिफिकेशन जस्ट टैली प्राइम में ओपन कीजिए डेटा, पिछले साल के डेटा के साथ कंपेयर कीजिए, 2 मिनट में आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, डिफरेंसेस मिल जाएंगे. जस्ट आपको यहाँ डिफरेंस का कॉलम जो भी दिखाई देगा आपको डिटेल्स में करके पार्टी को सेंड करना है कि यहाँ पे डिफरेंसेस है और पार्टी उसको सॉल्व करके आपको नया डेटा दे देंगे. इज इट गुड? चलो आगे. एनालिटिकल प्रोसीजर, दिस इज आल्सो अ ब्यूटीफुल फीचर. एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या है? इट इज अ कंपैरिजन सिनेरियो. जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर कंपेयरिंग द ग्रुप टू ग्रुप, ग्रुप टू कॉस्ट सेंटर, ग्रुप टू लेजर, लेजर टू कॉस्ट सेंटर, लेजर टू ग्रुप, लेजर टू लेजर. ऐसे बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए गए. तो लेट अस सी ग्रुप टू ग्रुप कंपैरिजन. तो हम क्या करते हैं, सेल के ग्रुप को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप से कंपेयर करते हैं. तो बेस ग्रुप इज सेल्स एंड कंपेयर विद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंपेयर विद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो ये क्या करेगा, दोनों साल के कंपैरिजन एक साथ में देगा हमको, करंट ईयर लास्ट ईयर. तो यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो कंपेयर विद परसेंटेज ऑफ द सेल्स अकाउंट, कंपेयर विद द परसेंटेज ऑफ द सेल्स अकाउंट, सेल्स के साथ है इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है और परसेंटेज टू द सेल, सेल के परसेंटेज में कितना आएगा. यहाँ पे आप देखेंगे तो सेल के अमाउंट आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई देगी. सेल्स अकाउंट करंट पीरियड 3 करोड़ 1 लाख और प्रीवियस पीरियड 2 करोड़ 21 लाख. वेरिएंस इज 80 लाख, 36.30% इंक्रीज. सेल में इंक्रीज कितना हुआ है अपना 36%. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक एक आइटम का आपको दिखाई देगा. लास्ट ईयर इज 7.25, इस साल 7.4. ओके. अकाउंट राइटिंग चार्जेस 0.6, गुड. ओके आगे. ऐसे एक एक आइटम आप देख सकते हो और जहाँ पे सबसे ज्यादा वेरिएंस है वहां पे आपको सोचने वाली जरूरत है. जैसे कि लास्ट ईयर में म्युनिसिपल टैक्स 12,500 था और इस साल सिर्फ 3,600 है. इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई रिसिप्ट रिकॉर्ड करनी रह गई है, बराबर. तो आपको क्या करना है, इसको सिर्फ पार्टी को सेंड करना है कि यहाँ पे यू कैन हैव क्वेरी हियर कि यहाँ पे कम रिकॉर्ड क्यों हुआ है. ऑन सिमिलर ग्राउंड्स रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एकच लोअर दिलाय. रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज आल्सो दोन लोअर करतात ना. लोअर. Salary is as compared to increase by 12%. Then in this way you can check all the scenarios. Sales to indirect expenses, सेल के साथ में indirect expenses कितने हुए कितने नहीं हुए. लास्ट ईयर देखो fuel expenses और 1,19,000, दिस ईयर ओनली 18,000. तो इसका ये रीजन ये है कि नीचे देखो इन्होंने एक और नया लेजर ओपन किया इस साल में, व्हीकल फ्यूल एंड फ्यूल रिपेयर्स एक्सपेंसेस. तो दोनों को अगर आप कंबाइन करते हो तो लगभग उतना ही हो जाएगा. तो दिस इज अ सिनेरियो. यहाँ पे बहुत सारी चीजें अपने को देखने को मिलती है. अगर आप सेल को डेटर्स के साथ में कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से पार्टी को कितना ज्यादा सेल किया है, कौन से पार्टी को क्या किया है. चलो उसको भी चेक कर लेते हैं. गो टू एनालिटिकल प्रोसीजर, ग्रुप बाय ग्रुप, सेल्स विद सन्ड्री डेटर्स, सेल्स विद सन्ड्री डेटर्स. तो लेट्स चेक हियर. तो आपको ये सन्ड्री डेटर्स पता चलेंगे कि कौन से पार्टी को आपने कितना किया हुआ है सेल. तो F12 शो लेजर्स विद वेरिएंस, आप अमाउंट में चेक कर सकते हो, परसेंट में चेक कर सकते हो. यू कैन चेक इन परसेंटेज एंड अमाउंट. आपको अगर चेक करना है कि सिर्फ बढ़े हुए होंगे तो चेक करो ग्रेटर देन 0. जिनका सिर्फ इंक्रीज हुआ है वो बताइए. तो इन दिस वे यू कैन चेक. तो लास्ट ईयर अपन ने किसको कितना सेल किया था, इस साल कितना सेल किया है, ये आपको दोनों को कंपेरिजन मिलता है. जैसे अनुराग चौधरी लास्ट ईयर 30.38% था, इस साल 0.64% है. यहाँ पे ये पाटिल कंस्ट्रक्शन लास्ट ईयर 40% उसने खरीदी किया था अपने से, इस साल सिर्फ 26% है. 8.23% का सेल कम हुआ है अब उसको अपना. यहाँ पे देखिए अंबुजा सीमेंट वाले का एक्चुअली ये क्रेडिटर है जो डेटर्स में आ गया है डेबिट बैलेंस से. इस तरीके से पार्टी सेल किया है. Similarly, on the similar grounds, you can compare purchase with
क्रेडिटर्स। तो ये रिपोर्ट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर में, एनालिसिस करने के लिए, डेटा एनालिसिस करने के लिए कि कौन सा लेजर चेक करना जरूरी है, कौन सी पार्टी का लेजर पे फोकस करना जरूरी है, और कौन से पार्टी को अपन ने इग्नोर किया तो भी चल सकता है वो। ऐसा आप यहाँ पे देख सकते हो परचेस के हिसाब से कौन सी पार्टी में सबसे ज्यादा परचेस है, क्या नहीं है। Do you understand? Yes, Ravi bhai. Good. Now इसके अंदर और एक ऑप्शन है एडवांस कंपैरिजन, जिसमें आप अलग अलग चीजें कंपेयर कर सकते हो। ग्रुप टू ग्रुप, जैसे कि ग्रुप टू कॉस्ट सेंटर देखते हैं हम, कैपिटल ग्रुप, कैपिटल अकाउंट एंड कॉस्ट सेंटर इसको देखते हैं। ग्रुप टू ग्रुप लेजर टू कॉस्ट सेंटर, बेस लेजर इज कैपिटल and compare with the cost center agricultural income. So let us check this one. लास्ट ईयर में क्या था और इस साल में क्या सिनेरियो है। इस साल में एग्रीकल्चरल इनकम कुछ भी नहीं है, लास्ट ईयर में 4,70,000 रुपए। इस तरीके से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। यू कैन हैव डिफरेंट थिंग्स हियर। तो ये कंपैरिजन के लिए बहुत बढ़िया टूल है, लेजर टू कॉस्ट सेंटर, लेजर टू लेजर, लेजर टू ग्रुप, ग्रुप कॉस्ट सेंटर, जैसे कैपिटल कंपेयर विद द कॉस्ट सेंटर। कैपिटल ग्रुप में ड्रॉइंग्स, विड्रॉल फॉर ऑल एक्सपेंसेस, so you can check this one. लास्ट ईयर 1 लाख, लास्ट ईयर 2,50,000 थे, इस साल 3,70,000। ऐसा इतना सारा इंक्रीज क्यों हुआ? तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक कि इतना सारा इंक्रीज क्यों हुआ है। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। तो उसके बाद एक है इसमें पेंडिंग डॉक्यूमेंट। पेंडिंग डॉक्यूमेंट मतलब आपका रिसीवेबल कितना है और पेएबल कितना है। अब ये क्या करता है, डेटर्स क्रेडिटर्स दोनों को मिक्स कर लेता है और आपको पेंडिंग रिसीवेबल दिखाई देता है। पेंडिंग रिसीवेबल इज द डेटर्स ग्रुप। तो क्रेडिटर्स में जो नेगेटिव है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है डायरेक्टली, और यहाँ पे साइमल्टेनियसली वो दिखाता है कि इसमें कितने वाउचर्स ऐसे हैं जो ऑन अकाउंट है, ऑन अकाउंट वाउचर्स। अगर आप तो बिल बाय बिल दिखाएगा, लेकिन अगर ऑन अकाउंट है तो ऑन अकाउंट। अब ये जो है इसको आप एजिंग एनालिसिस में अगर डालेंगे तो एजिंग बाय बिल डेट, तो आपको डायरेक्टली डिटेल्स मिल जाए। आपको ये एजिंग एनालिसिस भी दिखाई देगा, लेस देन 1 डेज, ग्रेटर देन 1 डेज। ये बिल टू बिल में अगर मेंटेन करते हो तो आपको लेस देन 180 डेज और ग्रेटर देन 180 डेज, ये जो ऑप्शन है हमारे पास कंपनीज में हमें करना पड़ता है। तो वो रिपोर्ट आपको डायरेक्टली यहाँ पे जनरेट होगा, लेस देन 180 डेज एंड ग्रेटर देन 180 डेज पेंडिंग अमाउंट में। लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है, आपके सभी पार्टीज, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स जितने भी है, सभी को बिल टू बिल ट्रांजेक्शन एनेबल होना चाहिए, और कोई भी वाउचर उसके अंदर ऑन अकाउंट नहीं होना चाहिए। नो वाउचर शुड बी ऑन अकाउंट, तभी ये एजिंग एनालिसिस बराबर आएगा, अदरवाइज ये करेक्ट नहीं आएगा। और अगर ये एजिंग एनालिसिस बराबर है तो कंपनीज एक्ट के अंदर जो हमें लगता है लेस देन 180 डेज एंड मोर देन 180 डेज, और रिपोर्ट आप डायरेक्टली इसमें से जनरेट कर सकते हो। आपको इसके लिए कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर की या फिर एक्सेल में एक्सपोर्ट करके चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आपके सभी पार्टीज को आप ये बता के रखिए कि भले ही आपका पैसा कैसे भी आए, लेकिन आपकी जो पार्टीज है उसका आप बिल टू बिल मेंटेन करना चालू कर दो। तो बिल टू बिल मेंटेन करने से फिफो बेसिस पे एडजस्टमेंट करते जाओ बोलना, तो लास्ट वाले जो बिल्स है वो आपको यहाँ पे एजिंग एनालिसिस के लिए काम आएंगे। नहीं रवि भाई, आपने क्या ऑन रखना पड़ेगा बताया? बिल टू बिल, जैसे सपोज यहाँ पे आप कोई परचेस की एंट्री करते हो, हाँ, तो जब परचेस की एंट्री करते हो तो यहाँ पे जब बिल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में वो आपको पूछता है कि ये बिल नंबर कौन सा है, न्यू वगैरह। तो मेरे इसमें कंपनी में बिल वाइज एनालिसिस ऑन है, लेकिन पार्टी को ऑन नहीं है। आपको F11 में ये फीचर ऑन करना पड़ता है, एनेबल बिल वाइज एंट्री। यस, पहली चीज। दूसरी चीज आपको एनेबल करना पड़ता है यहाँ पे पार्टी को मेंटेन बिल बाय बिल, इसको यस करना पड़ता है। ओके, जब आप इसको यस कर देते हो तो जब आप एंट्री सेव करोगे तो आपको पूछेगा बिल नंबर।
तो यहाँ पे बिल नंबर आता है, जैसे कि यहाँ पे न्यू रेफरेंस आया देखो। ओके, न्यू रेफरेंस आ गया। हाँ, अब जब इस कंपनी को डालेंगे तो ऑन अकाउंट आएगा। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको यहाँ नहीं। यहाँ पे ऑन अकाउंट आ रहा है, यहाँ पे न्यू रेफरेंस आ रहा है। ओके तो ओके इस तरीके से न्यू रेफरेंस आता है। तो ऐसे अगर आप बराबर सब मेंटेन कर रहे हो बिल टू बिल, तो आपका रिपोर्ट बहुत अच्छे से आता है। ओके, तो ये ओके रवि भाई। हाँ, तो इससे क्या हो जाता है, आपके जो एक्सेप्शनल रिपोर्ट है, ओवरड्यू रिसीवेबल एंड ओवरड्यू पेएबल, वो भी करेक्टली निकलते हैं। चलो, डेटा एनालिसिस, पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स में पेंडिंग पेएबल्स एंड पेंडिंग रिसीवेबल्स, ये दोनों ऑप्शन है। अभी देखो इसमें अपने ओरेंट में अपने डाला था अभी एक लेजर, एक तो यहाँ पे देखो एक आ गया, ये बिल टू बिल अपन ने कर दिया। देखो जो बिल हमने बिल टू बिल किया था वो बिल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये पेंडिंग है, देना बाकी। और इसके अंदर अंबुजा के अंदर ये 4 बिल देने बाकी, इसको बिल टू बिल मेंटेन किया है। जिसको बिल टू बिल मेंटेन किया है उसमें बिल पेंडिंग में आएंगे, ऑन अकाउंट वाले यहाँ पे आएंगे। ऑन अकाउंट वाले जब आपकी 0 हो जाएंगे तो आपका रिपोर्ट बराबर आएगा। नेक्स्ट, पेरियोडिक पेमेंट एंड रिसिप्ट। अब ये इसमें एक ऐसा है कि ये अभी तक मुझे भी पता नहीं चला है, लेकिन मैं आपको बता के रखता हूँ। पेरियोडिक पेमेंट चेक करने के लिए इसका जनरली इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल होता है, बराबर, तो इलेक्ट्रिक बिल हर महीने पेमेंट करते हैं अपन, तो इसको आप डायरेक्टली सेट करके रख सकते हो। यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे पेरियोडिक में आ जाएगा वो। लेकिन इसका रिपोर्ट जनरेट कहाँ पे होता है वो मुझे अभी तक मिला नहीं है, तो इसे ढूंढ के आप भी बताइए, ग्रुप में भी डालिए कि ये पेरियोडिक पेमेंट जो है ऑप्शन, ये इसका इस्तेमाल क्यों होता है। इंटरेस्ट का होता है, तो इंटरेस्ट को भी हम पेरियोडिक में सेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट बैंक, ये भी पेमेंट है, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है और अल्टर भी दबा के अपडेट करना है। अपडेट करेंगे तो पेरियोडिक पेमेंट में आ जाएगा। अब ये इज पेरियोडिक यस, अब ये यस किया हमने, लेकिन इसका जो रिपोर्ट रेडी होना चाहिए वो रिपोर्ट अभी यहाँ पे मुझे मिला नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो अवेलेबल कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक बिल जैसे हर महीने नहीं हुआ, एसआईसी का पेमेंट है हर महीने रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, सैलरी हर महीने रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, तो आप चेक कर सकते हो, बट कैसे को नहीं पता। ठीक है, चलो आगे। रिपीट ट्रांजेक्शन, ये एक है बट इसका बहुत सारा इस्तेमाल नहीं। ये लेजर, जैसे कि कैश का लेजर है, कैश के लेजर में 2000 की एंट्रीज है, तो आपको बताता है 2000 वाली कितने पहुंच सकते हैं। टैली का ये कहना है कि कोई ऐसा होता है जो मैनिपुलेशन इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ऐसे लेजर्स को आप करने के लिए रख सकते हो। जैसे कि सपोज किसी पार्टी को 5 लाख रुपया कैश पेमेंट करना था, ओके, और आपके अकाउंटेंट ने या फिर क्लाइंट के अकाउंटेंट ने क्या किया कि उस 5 लाख को कैश पेमेंट कर दिया। वो एक्चुअली ऐसी ही एंट्री थी, बोगस एंट्री, जिसको उड़ाना था। और वो उड़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, 10-10 हजार की 50 एंट्रीज कर डाली, 10-10 हजार की 50 एंट्रीज कर डाली, तो वो अकाउंट हो गया स्क्वायर ऑफ। अब वो ट्रैक नहीं होगा, अपने किसी भी प्रोसीजर में वो ट्रैक नहीं होगा, क्योंकि वो नील हो चुका है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे वो आपको बताएगा कि ऐसे कौन से लेजर्स है जिनको आपने एक एक एंट्री डाल दी है डायरेक्टली। जैसे कि ये पाटिल कंस्ट्रक्शन 2-2 लाख की एंट्रीज है, तो आप इसमें चेक कर सकते हो कैश की एंट्रीज है कि चेक की एंट्रीज है। इन दिस वे ऐसे आपको यहाँ पे पता चलेगा। जैसे कैश में 35,000 एंट्रीज आर देयर रिलेटेड टू कैश, तो ये सैलरी की एंट्रीज है, तो यहाँ पे दिखाई देती है सैलरी की एंट्रीज। तो ये सिमिलर टाइप एंट्रीज होती है अमाउंट की एंट्रीज, वो सभी एक जगह पे आपको दिखाई देती है। यहाँ पे इसको बोलते हैं रिपीटेड ट्रांजेक्शन ऑफ लेजर, एक ही लेजर में सेम अमाउंट के ट्रांजेक्शन हुए क्या। इसको आप एक चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, सन्ड्री क्रेडिटर्स या फिर सन्ड्री डेटर्स। किसी एक पार्टी को एक ही बिल 2 बार रिकॉर्ड हो गया है, ऐसा आपको इसमें दिखाई दे सकता है। एक ही पार्टी को एक ही बिल 2 बार रिकॉर्ड हो गया है क्या, ऐसा आप देख सकते हो इसमें। तो ये आपको पता चलेगा। जैसे प्रगति ट्रेडर में 10-10 हजार की 2 पेमेंट है एंड ऑल दिस थिंग्स, गॉट इट। तो ये रिपीटेड ट्रांजेक्शन का एक ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। देन रिलेटिव साइज फैक्टर, ये एक
आपको डेटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज है। रिलेटिव साइज फैक्टर में क्या होता है, कोई भी लेजर के अंदर सबसे बड़ी अमाउंट डिवाइडेड बाय सेकंड अमाउंट, जो भी वैल्यू आएगी उसको रिलेटिव साइज फैक्टर निकाल के वो आपको बताते हैं। तो इसमें आपको क्या पता चल सकता है कि कोई ऐसा लेजर है क्या कि जिसमें एक अमाउंट बहुत बड़ी आ गई है और उसके सेकंड वाली अमाउंट में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, जैसे कि चोलामंडलम का न्यू लोड, इसमें 53 लाख की एक एंट्री हुई है, उसके बाद की जो एंट्री है वो बहुत छोटी छोटी है क्योंकि रिपेमेंट छोटा छोटा है। तो ये RSF में तुरंत आ गया। अब ऐसा अगर आपको आ जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये नया लोन लिया हुआ है। तो जैसे ही नया लोन लिया है आपको पता चलेगा तो आप उसके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मंगवाना चले करेंगे कि जैसे इसका सैंक्शन लेटर दो, उसको कौन कौन से प्रॉपर्टी या फिर कौन सा सिक्योरिटी आपने दिया है उसका दो, ऑल दिस थिंग्स कंपनीज एक्ट में हमने लगता है सब चीजें। तो ऑल दिस थिंग्स यू कैन आस्क। सिमिलरली यू कैन आस्क इसमें इंटरेस्ट रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ वगैरह वगैरह। तो ये सभी चीजें यहाँ पे दिखाई देगी। अब जब इसको आप सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स दिखाई देगी सब। हाँ, ग्रुप वाइज डिटेल्स जैसे सिंडिकेटर्स के डिटेल्स देख सकते हो। तो सिंडिकेटर्स में सबसे ज्यादा चेक करने वाली चीज कौन सा है, ये अंबुजा सीमेंट वाला लेजर। तो इसको परचेस वाला 66,000 और 67,800, इतना ज्यादा डिफरेंस, इतना वेरिएंस है, वेरिएंस क्यों है तो ये आप चेक कर सकते हो। तो ये अवेलेबल है RSF में रिलेटिव साइज फैक्टर। ये क्या करता है, सबसे बड़ी वैल्यू डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू, तो दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज RSF, और ये रिलेटिव साइज फैक्टर में दिखाई देता है। उसके बाद इंटर बैंक ट्रांजेक्शन, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन हुए है अपने ही। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज, पेमेंट एंट्रीज, पेमेंट से एंट्री किया है, रिसिप्ट से किया है, कॉन्ट्रैक्ट से किया है, वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसमें जो भी वाउचर्स है वो आपको यहाँ पे सिमिलरली दिखाई देंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट डेट और बैंक डेट। बहुत सारी जगह पे इंस्ट्रूमेंट डेट और बैंक डेट में गलती हो सकती है, तो वो गलती आप चेक कर सकते हो। या फिर बैंक डेट डाला ही नहीं है, जैसे यहाँ पे देखो बैंक डेट डाला ही नहीं, इंस्ट्रूमेंट डेट डाला है, बैंक डेट डाला ही नहीं, तो दैट थिंग्स कैन बी अवेलेबल हियर। कभी कभी क्या होता है कि एक बैंक में डाल दिया, दूसरे बैंक में बैंक डेट बहुत लेट आई, एंट्री तो सेम डेट पे होगी लेकिन अलग डेट पे आएगा, तो ऐसा आप उसमें ढूंढ सकते हो, यू कैन दिस कंसल्ट। Then this is very important from the point of view of the SFT system। इनकम टैक्स में जो फॉर्म जाता है SFT का, और सिस्टमेटिक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या है वो, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक। तो बैंक में कैश डिपॉजिट और विड्रॉल क्या हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हो, कैश विड्रॉल और डिपॉजिट इनटू बैंक। जस्ट प्रेस एंटर और आपको दिखाई देगा कॉन्ट्रा में सभी चीजें यहाँ पे। ऐसे बैंक में आपने कितना डिपॉजिट किया और कितना विड्रॉल किया। You can get this amount here directly, 87,12,000 total deposit and withdrawal. In this way you can get here number of days ledger। तो ये आपको क्रॉस टैली करने के लिए बहुत अच्छा है। कहाँ पे, SFT में। जो इनकम टैक्स में अभी बहुत सारी चीजें आ रही है, तो कैश डिपॉजिट का भी अमाउंट आता है के ऊपर डिपॉजिट किया है तो उसको आप क्रॉस टैली कर सकते हो यहाँ पे कि आप कितना दिख रहा है इनकम टैक्स पोर्टल पे और अपने लेजर में कितना दिख रहा है, और अगर कुछ वेरिएंस है या फिर कुछ डिफरेंस है तो हम लोग उसको चेक करके। तो दिस इज कैश विड्रॉल और डिपॉजिट इनटू द बैंक, इट इज अवेलेबल इन द रिपोर्ट। यहाँ पे ये रिपोर्ट भी अवेलेबल है। उसके बाद में है फिक्स एसेट एनालिसिस। फिक्स एसेट में एडिशन क्या हुआ है, डिलीशन क्या हुआ है या फिर एडजस्टमेंट क्या हुआ है एसेट में। सेम रिपोर्ट इज अवेलेबल इन फिक्स एसेट आल्सो। फिक्स एसेट में भी हम इसको डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पर यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन एडिशनल दिया है, number of days less than 180 less than 180। Again for this it is required to be have a date wise report। जो भी बिल वाइज रिपोर्ट अवेलेबल है होना जरूरी है। बिल वाइज अगर है तो यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन आपको दिखाई देगा। That comes transactions on holiday। This is very good one, transaction on holiday। अगर आपके पास वीकली ऑफ है कोई पर्टिकुलर डे तो आप चेक कर सकते हो कि वीकली ऑफ को कौन से ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो हॉलीडे कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे अवेलेबल है, यू कैन गो टू हॉलीडे कॉन्फ़िगरेशन।
हॉलीडे कॉन्फ़िगरेशन में वीकली ऑफ का ऑप्शन होता है। अगर आप वीकली ऑफ हमारे पास में होता ही नहीं है, हम 12 ही महीने काम करते हैं, 24 आवर्स हर दिन काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ डेट्स को हॉलीडे आपके ऑफिस में रहती है, सपोज जैसे कि 15 अगस्त, 15 अगस्त रीजन फॉर हॉलीडे इंडिपेंडेंस डे, देन 26 जनवरी, 26 जनवरी को गणतंत्र दिन। उसके बाद में सपोज आपका 14 अप्रैल, उसके बाद और गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ये जो दिन है जिनको छुट्टी रहती है ऑफिस के या फिर फैक्ट्री को, तो वो दिन आप यहाँ पे डाल सकते हो। और वीकली आप जो भी है आपका, सपोज फ्राइडे है, सैटरडे है, MIDC में आपने जलगांव के MIDC में सैटरडे इज हॉलीडे, तो सैटरडे डाल सकते हो। एंड यू कैन चेक हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर ऑन द हॉलीडे, हॉलीडे को कितनी एंट्रीज हुई है। जैसे कि इंडिपेंडेंस डे को 15 अगस्त को एंट्रीज हुई है, ये 14 अप्रैल को हुई है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती को एंट्री हुई है। एंड यू कैन आस्क फॉर द पार्टी, आस्क टू द पार्टी की ये जेन्युइन है कि नहीं है और क्या है। अगर बड़ी कंपनी है तो यू कैन आस्क हिम। F12 में जाके यू कैन चेक हियर, एक ऑप्शन यहाँ पे होता है क्लाइंट क्लैरिफिकेशन नोट। यहाँ पे क्लाइंट का वेरिफिकेशन वगैरह करके आप क्लाइंट का क्लैरिफिकेशन भी ले सकते हो यहाँ पे, अगर कुछ आया तो। शो नरेशन, यस, वेरिफिकेशन नोट, क्लाइंट्स वेरिफिकेशन, डेट एंड टाइम वेरीफाइड बाय, शो वेरीफाइड बाय, क्लासिफाइड क्लासिफिकेशन फ्रॉम एंड सो ऑन। वीकली ऑफ, कौन सा स्पेशल डे चाहिए होगा आपको, तो उस पर्टिकुलर डे का भी आप देख सकते हो। जैसे 15 अगस्त का देखना है तो प्रेस हियर 15 अगस्त का दिखाई देगा। तो दिस इज अवेलेबल इन कॉन्फ़िगरेशन F12। नेक्स्ट, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू इन द ट्रांजेक्शन। तो कोई भी लेजर के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये इस रिपोर्ट में दिखाई देता है। अब ये रिपोर्ट जो है थोड़ा सा मिसगाइड भी होता है, क्योंकि यूपीआई की वजह से अभी क्या हो रहा है, लोग क्या करते हैं, पहले 1 रुपया ट्रांसफर करते हैं। जो डेटर्स पार्टीज होती है पहले 1 रुपया ट्रांसफर करती है और फिर बाकी की अमाउंट ट्रांसफर करती है। उसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पे बहुत सारी जगह पे 1-1 रुपया भी दिखता है। द मिनिमम वैल्यू इज 1 रुपीज एंड द मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू जो भी है उसके अकाउंट में, इसमें देखो डिस्काउंट में 2 रुपया, 2600 रुपये, ऐसे अलग अलग ये होता है। तो इसका आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर सकते हो कि क्या है और क्या नहीं है। जैसे कि इस अकाउंट में देखेंगे आप ट्रांसपोर्टेशन के, तो 30,55,100% का डिफरेंस है। तो एक्चुअली ये इट इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि 1 रुपए का ट्रांजेक्शन कुछ ना कुछ हुआ होगा उसमें, यूपीआई से हुआ है फोन पे के जरिए। तो जनरली अभी ये फोन पे और इसकी वजह से क्या हो गया है कि 1-1 रुपया ट्रांसफर करने की सिस्टम आ गई है। पहले 1 रुपया ट्रांसफर करो फिर बाकी का अमाउंट। उसके बाद इसमें एक अच्छा रिपोर्ट ऐसा है जो एडवांसेस के लिए है, पेंडिंग एडवांसेस। तो आपने जो भी एडवांसेस देके रखे हैं उसका जो भी पेंडेंसी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। इस साल में कितने पैसे दिए, इस साल में कितने पैसे रिसीव हुए, ओपनिंग बैलेंस क्या था। ये लोन्स एंड एडवांसेस का रिपोर्ट है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे पता चल जाता है कि किसका किसका रिकवरी हुआ है, नहीं हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन ऑल्सो। बिजनेसमैन के लिए भी बहुत जरूरी है, सैलरी एडवांस अगर दिया हुआ है तो किसका रिकवरी हो रहा है नहीं हो रहा है, टाइम टू टाइम बराबर चेक करने के लिए उसको ये काम आ सकता है। You can ask your clients to check this report from time to time to have a recovery. Then stale checks and instruments. Stale checks और instruments जो है तो वहाँ पे दिखाई देता है आपने इशू किया है लेकिन क्लियर नहीं हुआ। ये बैंक डेट आपने नहीं डाला होगा, इसके लिए नहीं होता है। इंस्ट्रूमेंट डेट आपने डाला है लेकिन बैंक डेट उसमें बैंक में जाके डाला नहीं है, तो आप इसको रिकनसाइल कर सकते हो एंड एड टू द गो टू द रिकनसाइल एंड रिकनसिलेशन के डेट डाल के आप उसको क्लियर कर सकते हो। तो ऐसे चेक्स वगैरह जो भी रहेंगे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, स्टेल चेक्स एज बाय डेज, तो ये आपको क्लियर करना जरूरी है। इंस्ट्रूमेंट चेक्स, तो इतने सारे ऑप्शंस इसमें है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाउचर वेरिफिकेशन। मे आई टेक 2 मिनट्स सर? यस सर। हाँ, 2 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। 2 मिनट के बाद वापस चालू कर।
There is break of only 2 minutes. पार्टिसिपेंट्स ऑनलाइन है या सिर्फ दिख रहे हैं? पचास 50 संतोष भाई। पचास 50 नहीं बोल सकते, 80 20 भी हो सकता है, 70 30 भी हो सकता है। प्रशांत भाई, सीएम मुकेश अग्रवाल भूसावल से बोल रहा हूँ। हाँ सर, सर बोलिए सर। अभी मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, भी कृपया उस पर रिस्पॉन्ड ना करें। उस पर मेरा और मेरी मिसेस का फोटो लगा हुआ है और पैसे डिमांड किए जा रहे हैं, प्लीज। ओके सर, तो नाउअडेज ये बहुत हो रहा है सर। ये हाँ, ये जितने ही मेंबर अभी कॉन्फ्रेंस में अपने इस पे लाइव है, कृपया ध्यान रखें, सीएम मुकेश अग्रवाल भूसावल के नाम से कुछ भी मांगा जाता है तो कृपया ना दे। देना हो तो पर्सनली ब्रांच में पैसे जमा करते, मैं वहां से ले लूंगा। हाँ, 1 मिनट में रवि भाई। हाँ, कुछ दिन पहले मेरा भी अकाउंट ऐसे ही हुआ था, डुप्लीकेट अकाउंट क्रिएट करके मेरे दोस्तों से पैसे मांगे गए थे। तो हाँ, मैं उसके लिए पुलिस स्टेशन भी गया था, 2-3 घंटे पुलिस स्टेशन में भी बितवाए। हाँ, पुलिस स्टेशन में जाके बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होता है, बट एक फायदा होता है कि वो अकाउंट डिलीट करने में अपनी हेल्प करते हैं। और फेसबुक की खुद की ये पॉलिसी है कि अगर 30-40 लोगों से ज्यादा लोग उस अकाउंट को फेक अकाउंट बोलते हैं, तो फेसबुक खुद उसको डिलीट कर देता है। जैसे एग्जैक्टली मेरे साथ में भी यही हुआ था। तो वो आपको उसमें जाके उसको फेक अकाउंट करना है। हाँ, तो जितने भी मेंबर्स यहाँ पे हैं, जितने भी मेंबर्स यहाँ पे हैं, सबको बोलता हूँ कि उसको फेक अकाउंट करते जाए फटाफट। हाँ, बराबर। और सर, आप खुद उस अकाउंट को, जो भी अकाउंट दिख रहा है, उसको जाके उसमें एक ऑप्शन होता है, समवन इज प्रिटेंडिंग टू बी मी, ऐसा ऑप्शन होता है। मुझे नहीं दिख रहा है, मैं हूँ दूसरे मोबाइल से फेसबुक अकाउंट पे ही। हाँ, तो आपके फेसबुक में से वो फेसबुक का अकाउंट ढूंढिए जो आपने बोला फेक है ऐसा। उस फेसबुक के अकाउंट में कॉर्नर में 3 डॉट होते हैं, उसमें जाके रिस्पॉन्स का ऑप्शन होता है और उसमें आपको सिलेक्ट करना होता है प्रिटेंडिंग टू बी मी, जो मैंने भी किया था। ओके, तो उससे वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और फेसबुक जल्द से जल्द उसको डिलीट कर देगा, वो अकाउंट ही डिलीट हो जाएगा। मेरा लगभग मॉर्निंग में किसी ने क्रिएट किया था, शाम के 5-6 बजे तक वो डिलीट हो गया था। लेकिन रवि भाई, अगर चार लोगों ने अगर उसको फेक अकाउंट कर दिया ना, हाँ, वो फेक अकाउंट से जो 4 लोगों, किसी को भी रिक्वेस्ट गई है, उसमें से 4 लोग अगर उसको फेक अकाउंट बोल देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अकाउंट डिलीट हो जाता है। चलो मैं इमीडिएटली करता हूँ उसको फेक अकाउंट, इमीडिएटली करता हूँ। जैसे आपको जिन्होंने बताया होगा ना मुकेश भाई, सबको बोलता हूँ कि फेक अकाउंट करो उसको इमीडिएटली। यस, ओनली उनको वहां पे सेटिंग, उनको वो फ्रेंड रिक्वेस्ट में जाके उसको फेक अकाउंट बोलना है, एक्सेप्ट नहीं करना है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट। या मैं इमीडिएटली करता हूँ सर, इमीडिएटली करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। और दूसरा एक चीज जो मुझे पुलिस वालों ने बताई थी, अगर आपके पास में कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, कोई भी, मतलब आपसे ओटीपी लेके सामने वाले ने पैसे निकाल लिए, आपका एटीएम का इस्तेमाल करके सामने वाले ने पैसे निकाल लिए, आपके इंटरनेट आईडी का पासवर्ड का इस्तेमाल करके निकाल लिए जो आपको मालूम नहीं, 3 घंटे के अंदर अगर आप वहां पे पुलिस स्टेशन में उसका रिक्वेस्ट डालते हो तो 99% चांसेस होते हैं कि आपके पैसे वापस आएंगे। बट पहले कंडीशन है कि इन कंट्री ट्रांसफर हो, आउट ऑफ कंट्री गया तो वो नहीं कर पाते कुछ। ओके, बट मोस्टली नाइजीरियन अकाउंट्स में ट्रांसफर होता है वो पैसा।
ओके, लेकिन बहुत सारे ऐसा है कि इंडिया में ही ट्रांसफर होते हैं पैसे। हाँ, अगर छोटी अमाउंट्स है तो इंडिया में होते हैं, अगर बड़ी अमाउंट्स है तो दे में बी ट्रांसफर टू अदर अकाउंट्स। अदर तो कंट्रीज। हाँ, तो यू कैन चेक दिस वन। अगर आपके पास में ऐसा होता है तो तुरंत अपने बैंक को फोन करने से पहले पुलिस स्टेशन को फोन कीजिए, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके उसका ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह सब दीजिए। तो 99% चांसेस दे सेड कि अगर आपके पास में फाइनेंशियल फ्रॉड कुछ भी होता है तो वी आर रेडी टू रिफंड बैक। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। चलो आगे। एक और चीज है, अगर आपके पास आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हो तो ऑलवेज यूज इनकॉग्निटो मोड। ब्राउजर पे जब भी आप जाएंगे तो इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल कीजिए, तो उसमें कोई भी कुकीज वगैरह नहीं रहते, जिसकी वजह से आपके पासवर्ड वगैरह जो भी चीजें हैं वो सेव होने के कोई चांसेस नहीं रहते। वो कहाँ से ऑन होता है रवि भाई? हर ब्राउजर में अभी है, जैसे यहाँ पे सामने अगर आप देखेंगे दिस इज ब्राउजर फायरफॉक्स। फायरफॉक्स में यहाँ पे जाके आप न्यू प्राइवेट विंडो बोल सकते हैं। ओके ओके। न्यू प्राइवेट विंडो में जाके आप करेंगे तो दिस इज अ गुड वन। या फिर अगर आप अगर आप टोटल सिक्योरिटी का इस्तेमाल कर रहे हो, क्विक हिल टोटल सिक्योरिटी। क्विक हिल, यस। हाँ, तो क्विक हिल में एक ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके आप उससे बच सकते हो। बैंकिंग ब्राउजर उसका नाम है डायरेक्टली सेफ बैंकिंग। तो इसको सेफ बैंकिंग एनेबल करना पड़ता है आपको। तो जैसे आप एनेबल करेंगे तो आपके कोई भी चीजें इधर उधर नहीं होती। तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे ना क्विक हिल का ब्राउजर ही आता है डायरेक्ट। क्विक हिल का खुद का ब्राउजर डायरेक्टली आता है जिसको आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो, क्विक हिल ब्राउजर बोल के। या फिर अगर आप क्विक हिल प्रो इस्तेमाल कर रहे हो तो प्रो के सेटिंग्स के अंदर, क्विक हिल प्रो के सेटिंग्स के अंदर आई थिंक एक ऑप्शन है, आप सर्च कीजिए यहाँ पे प्रोटेक्शन में ब्राउजर सैंडबॉक्स। अगर इस ब्राउजर सैंडबॉक्स को आप अनेबल करते हो तो आपके ब्राउजर के बाजू में एक ग्रीन कलर की लाइन आती है जो कोई आपका डिफॉल्ट ब्राउजर होगा जब आप ओपन करोगे, तो दैट इज सिक्योर्ड वन। ओके ओके। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज ऐसा है कि बहुत सारी वेबसाइट्स को वो जाने ही नहीं देता। हाँ, वो डिफिकल्टी है। हाँ, अगर कुछ लेजिटिमेट अगर उसको लगा कि ये वेबसाइट सेफ नहीं है आपके लिए तो आपको वहाँ पे जाने ही नहीं देगा। इंस्टेड सेफ बैंकिंग इज द बेस्ट। हाँ, तो दैट इज वेरी गुड। और ये इनकॉग्निटो में मोड आज की तारीख में बहुत अच्छा है। हाँ, यूज दिस फीचर इन प्राइवेट विंडो, तो इसमें कुछ भी स्टोर नहीं होता है। ओके मोबाइल में अगर आप ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हो इंटरनेट बैंकिंग वाले, तो मेक श्योर कि आप उसमें भी एक एंटीवायरस डाल के रखो। सुमित भाई वालेचा। चलो, नाउ डिस्प्ले एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन लास्ट टॉपिक इज लास्ट, एंड उसके बाद में और एक लास्ट टॉपिक है। ये दो टॉपिक है हमारे पास में अभी, वाउचर वेरिफिकेशन और उसके बाद में मार्क वाउचर। मार्क वाउचर इज आल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल फीचर फॉर दोज हु डायरेक्टली मेक चेंजेस ऑन द क्लाइंट्स डेटा इन देयर ऑफिस। क्लाइंट के डेटा में जब हम डायरेक्टली चेंजेस करते हैं अपने ऑफिस में, तो उसके लिए ये मार्क वाउचर नाम का जो ऑप्शन है बहुत अच्छा है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वाउचर वेरिफिकेशन, अभी वाउचर एंड वेरिफिकेशन का ऑप्शन हमारे पास में है, जिसमें हमने देखो 12 सैंपल हमने खुद निकाले थे, उसमें से 7 हम वेरीफाई कर चुके हैं और एक पेंडिंग है। अब सैम्पलिंग के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके पास में है। एक है आप मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में जा सकते हो, you can go to the master configuration में you can check periodic payment sorry sampling methods। एक सेकंड यहाँ पे, हाँ, सैम्पलिंग मेथड्स में जाइए। तो सैम्पलिंग मेथड्स में आपको अलग अलग सैंपल्स यहाँ पे दिखाई देंगे, रैंडम सैम्पलिंग। तो आप किसी भी पर्टिकुलर वाउचर को सिलेक्ट करके सैंपल सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि सेल्स है, तो सेल्स में इतने सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है सैम्पलिंग के लिए। अमाउंट रेंज, आप अमाउंट की रेंज दे सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम। पिन कोड एनालिसिस यू कैन यूज, इवन नंबर वाउचर्स, ऑड नंबर वाउचर्स, स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफाइड वाउचर्स। इफ यू सिलेक्ट स्पेसिफिक वाउचर्स, तो from beginning show every so and so entry from voucher number so and so. The sampling method will consider every specified voucher of applicable voucher type from the beginning and will show only those vouchers from voucher numbers as specified in the
मेथड। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल है। अमाउंट रेंज में अगर आप जाते हो तो मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट कितना चाहिए, तो उस रेंज में जो भी वाउचर आएंगे वो सिलेक्ट करेगा। देन बेनिफिट एनालिसिस, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू फर्स्ट डिजिट मेथड इट इज यूज, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट मेथड। तो यहाँ पे बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से आपको वाउचर्स दिखाई देंगे। तो जब आप वाउचिंग आप कर चुके हो सैंपल्स, तो यहाँ पे 39 सैंपल उसने निकाले हैं। देखो, जस्ट गो टू सैंपल्स। आपको करना क्या है, अगर आप कॉलम नंबर 1 पे हो तो आपको सभी वाउचर्स दिखाई देते हैं। अगर आप कॉलम नंबर 2 पे हो सैंपल्ड वाले में, तो आपको सिर्फ सैंपल्ड वाउचर्स दिखाई देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप वेरीफाइड वाले में जाते हो तो वेरीफाइड वाले दिखाई देंगे। देन पेंडिंग वाले में, इंटरनल ऑब्जर्वेशन वाला ये पेंडिंग वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे सैंपल्ड में जाइए, तो सेल्स में सैंपल में जाके बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से कितने वाउचर्स आए अपने 27। तो जस्ट गो टू हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ये मई महीने में 3 वाउचर अपने को चेक करने हैं। तो प्रेस एंटर। यहाँ पे जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है प्रेस दैट ऑब्जर्वेशन। सपोज आपको एक्सटर्नल क्लैरिफिकेशन चाहिए क्योंकि 8 लाख का बिल है, तो ये आपने सपोज उसको मांगना है ई वे बिल, प्लीज प्रोवाइड ई वे बिल। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए प्लीज प्रोवाइड ई वे बिल। आप उसको ई वे बिल मांग रहे हो, किससे मांग रहे हो, तो वहां पे जो भी एडिशनल यूजर्स रहेंगे वो कंपनी के, तो अगर सपोज आपकी कोई पार्टी है उसके जो भी यूजर्स रहेंगे उस यूजर में से जो भी रिस्पॉन्सिबल है सेल के लिए, सपोज ये प्रणय रिस्पॉन्सिबल है तो सिलेक्ट प्रणय। प्रायोरिटी हाई। कैटेगरी कौन सी कैटेगरी, ऑथराइजेशन है, हाई वैल्यू है, नॉट कनेक्टेड टू द बिजनेस है, या फिर सपोर्टिंग चाहिए आपको, तो हाई वैल्यू है, इसके लिए हम लोग पूछ रहे हैं। तो प्रेस हाई वैल्यू, एक्सेप्ट। अब ये हमने एक्सटर्नल क्लैरिफिकेशन के लिए डाल दिया। आगे का सैंपल हम चेक करते हैं सपोज जून महीने में। तो जून महीने में भी सब कैश वाले हैं सेल, क्योंकि एक सेल जो लेजर है कैश का लेजर है, तो क्रेडिट सेल वाला लेजर चेक करते हैं अपन। एक है, दूसरा वी आर गोइंग टू क्रेडिट सेल्स। वाउचर वेरिफिकेशन, गो टू मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आपको जाना कहाँ पे, मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। आप डायरेक्टली भी जा सकते हो वाउचिंग में। यहाँ पे सभी वाउचर टाइप्स आपको दिखाई देंगे, कॉन्ट्रा, क्रेडिट वाउचर, डेबिट नोट, ई वे बिल वगैरह वगैरह वगैरह। तो गो टू क्रेडिट सेल्स। अभी हम क्रेडिट सेल चेक करने वाले हैं। तो क्रेडिट सेल में इतने सारे सेल्स हैं, तो जस्ट क्लिक ऑन मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, सैम्पलिंग मेथड्स। अब यहाँ पे आपको सभी वाउचर टाइप दिखाई देंगे। उसमें हमें जाना है क्रेडिट सेल पे। क्रेडिट सेल्स बेनिफिट एनालिसिस में जाते हैं। अभी एक काम करते हैं, ऑड एंड इवन नंबर पे करते हैं। तो ऑड नंबर वाउचर्स, जितने भी ऑड नंबर वाले हैं, स्टार्टिंग वाउचर नंबर 1, तो ऑड वाउचर्स यहाँ पे आ जाएंगे। जस्ट प्रेस एस्केप, बैक आ जाइए। अब वाउचर वेरिफिकेशन, क्रेडिट सेल्स, वाउचर वेरिफिकेशन में अभी ये उसमें कुछ भी नहीं आए, नो वाउचर्स आर ऑड नंबर्स। ओके, वाउचर नंबर इसके हिसाब से डालना पड़ेगा शायद से अपने को। 1 तो है इसमें C20-1, बट वाउचर सैम्पलिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अगेन गो टू सैम्पलिंग मेथड, क्रेडिट सेल्स, लेट अस चेक अमाउंट रेंज। मिनिमम अमाउंट 50,000, मैक्सिमम अमाउंट 99,000। तो दिस इज सैम्पलिंग जो हमने किया है अभी। तो उसमें 288 आर सैंपल्ड नाउ। टोटल वाउचर थे 295, उसमें से 228 आर सैंपल्ड। तो ये सैम्पलिंग हमारे पास में आ गया है। अब जब सैम्पलिंग हम चेक करेंगे तो इसको हम चेक कर लिया, सपोज वेरीफाइड, इसको कहेंगे ओके। नाउ दिस वन इज इंटरनल ऑब्जर्वेशन, डेट रॉन्ग, प्रायोरिटी हाई, इसको डेट करेक्शन करनी है। उसके बाद में सपोज ये धर्म सिंह वाला है, इसका एक्सटर्नल क्लैरिफिकेशन चाहिए हमें, एनीथिंग यू वांट, जैसे कि हमें इसका चाहिए ई वे बिल, वापस से ई वे बिल। प्रणय से हमें इसका डिटेल चाहिए है, ये चाहिए है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आपका जो भी स्टाफ रहेगा वो उसको एक एक करके चेक करते जाएगा सैंपल्स को, जितने भी सैंपल्स आपने निकाले हुए हैं। तो ये हो गया सैम्पलिंग के बाद में आपको यहाँ पे डिटेल में दिखाई देगा कि आपने कितने वेरीफाई किए हैं, कितने वेरिफिकेशन
पेंडिंग है, आपने सैंपल किए हैं लेकिन वेरिफिकेशन पेंडिंग है, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो उसमें आपको चेक करना है सपोर्टिंग मैन्युअली सैंपल। आप मैन्युअली भी सैंपल कर सकते हो, जैसे कि सैंपल में गए आप यहाँ पे गए, इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो, एंड इसको सिर्फ सेट मैन्युअल सैंपल, ये सब मैन्युअल सैंपल हो जाएंगे। अब इसको वेरीफाई करना है, जस्ट प्रेस ओके, ये हो गया चेक, ओके, ये भी हो गया चेक। ये दोनों को एक साथ में करना है तो दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, जस्ट प्रेस वेरीफाई, ओके, ये हो गया ओके। इस तरीके से जब आपका पूरा सैम्पलिंग चेक करके हो जाएगा, पूरा जब चेक करके हो जाएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेट वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में वेरिफिकेशन कंप्लीट जब आप कर देंगे तो जितने भी वाउचर्स आपके हैं सबका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया ऐसा एज्यूम किया जाएगा। सेव वेरिफिकेशन यस करेंगे तो ऑल विल बी वेरीफाइड। अब मैं इसको नो ही रखता हूँ, तो आपका देखो वेरीफाइड है 12%, सैंपल है 271, टोटल 2999 वाउचर्स आर देयर, एक्सटर्नल क्लैरिफिकेशन पेंडिंग इज 2। अब ये जो एक्सटर्नल क्लैरिफिकेशन हमने मंगवाया है ये किससे मंगवाया है? प्रणय से। तो हम प्रणय के लेजर में जाएंगे और उसमें चेक करेंगे कि ये कहाँ पे दिखता है। ये हमारा हो गया वाउचर वेरिफिकेशन, वाउचिंग का काम कंप्लीट हो गया। एज्यूमिंग कि वाउचर का काम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, मैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन भी आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले वाउचिंग वाला। तो अभी ये कहाँ पे दिखता है अपने को? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाइए, टैली ऑडिट। अब टैली ऑडिट में मास्टर्स, these are the masters available, अच्छा सॉरी ये उसके अकाउंट में जाकर देखना पड़ेगा, इंटरनल कैलकुलेशन, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे वाउचर वेरिफिकेशन। अब हमने क्लाइंट को फोन करके बोल दिया कि हमें प्रणय से कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो प्रणय क्या करेगा? उस कंपनी में लॉगिन करेगा। तो मैं प्रणय का लॉगिन करता हूँ, चेंज यूजर। अब यहाँ पे टैली प्राइम के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि विदाउट शटिंग डाउन द कंपनी यू कैन डायरेक्टली चेंज द यूजर। आप डायरेक्टली यूजर चेंज कर सकते हो। पहले हमें क्या करना पड़ता था? कंपनी पूरा बंद करना पड़ता था। अभी वो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अभी प्रणय ने लॉगिन किया, और प्रणय ने लॉगिन करने के बाद उसको जाना है डिस्प्ले में। उसको कहाँ पे जाना है? डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक्स, डिस्प्ले के अंदर अकाउंट बुक्स में वाउचर क्लैरिफिकेशन नाम का ऑप्शन आएगा। वाउचर क्लैरिफिकेशन में जब वो जाएगा तो वहां पे दिखाई देगा उसको वेरिफिकेशन ऑफ वाउचर्स। वेरिफिकेशन ऑफ वाउचर्स में हमने यहाँ पे लिखा है प्लीज प्रोवाइड ईवे बिल, और दूसरा है धर्म सिंह का, उसका भी ईवे बिल मांगा है उससे। तो क्या करेगा? इसको क्लिक करेगा और सिलेक्ट करके क्लैरिफाई बोलेगा। व्हाट यू हैव टू डू? सिलेक्ट द बिल इनवॉइस एंड प्रेस ऑन क्लैरिफाई। क्लैरिफाई के बाद उसमें क्लैरिफिकेशन उसने डालना है बिल प्रोवाइडेड, ईवे बिल प्रोवाइडेड। तो जैसे वो क्लैरिफाई हो जाएगा उसके बाद उसके रिपोर्ट में से वो निकल जाएगा, क्लैरिफाइड ईवे बिल प्रोवाइडेड। नाउ जस्ट गो हियर, clarification completed. Done. Display, account books, voucher clarification। क्लैरिफिकेशन करने के बाद यहाँ से वो क्लैरिफिकेशन निकल जाता है। शायद वो लेटेस्ट वाले अपडेट में है, अपडेट कर दिया है उन्होंने, क्योंकि ये पुराना अपडेट है। तो यहाँ से वो गायब हो जाता है और आपको आपके रिपोर्ट में वहाँ पे दिखाई देता है कि क्लैरिफिकेशन मिल चुका है। गो टू कंपनी, चेंज द यूजर रवि। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया था, इसके लिए पासवर्ड उसने फिर से पूछा नहीं। तो डिस्प्ले रिपोर्ट्स, एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, वाउचर वेरिफिकेशन। आपको यहाँ पे वाउचर वेरिफिकेशन में यहाँ पे क्लैरिफाइड आ जाता है, यू विल गेट द क्लैरिफिकेशन हियर। जिसका भी क्लैरिफिकेशन आ गया यहाँ पे क्लैरिफाइड में आपको आंसर आ जाएगा उसका।
जब भी वो क्लैरिफाई करेगा। जब भी पेंडिंग वाले हैं उसको सिलेक्ट करना है और क्लैरिफाई, तो एक क्लैरिफिकेशन का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो भी आपकी क्वेरीज है वो क्वेरीज यहाँ पे आप डायरेक्टली उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करके सेंड कर सकते हो पार्टी को। पार्टी कैन डायरेक्टली चेक एंड रिप्लाई। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल ऑप्शन। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस यू कैन चेक डायरेक्टली फ्रॉम हियर, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको रिलेटेड पार्टी सेट करनी पड़ती है पहले। तो कैसे सेट करेंगे? गो टू मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, क्लिक ऑन रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी में जो भी रिलेटेड पार्टीज है उनको पहले सिलेक्ट कर दो रिलेटेड पार्टी बोल के। जैसे इनके केस में नवजीवन का है ना 2020 ज्योति दानेज। तो इस यहाँ पे आपको प्रेस करना है अल्टर वी टू अपडेट। इज अ रिलेटेड पार्टी? यस। रिलेशन टाइप से वाइफ। ओके। उसके बाद में इसके सन का नाम है गौरव दानेज। तो दिस इज गौरव दानेज। रिलेटेड पार्टी यस, इट इज सन। और एक है नवजीवन ज्वेलर्स। तो ये आपको नवजीवन ज्वेलर्स में जाना है, से यस इट इज अ ब्रदर। तो ये 3 पार्टीज होगी रिलेटेड पार्टीज में। आपको एस्केप करना है, बाहर आना है। और जब आप वाउचिंग वेरिफिकेशन में आएंगे तो आपको यहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन दिखाई देंगे। जस्ट प्रेस एंटर एंड यू विल गेट टू नो हियर हाउ मच क्लोजिंग बैलेंस इज देयर एंड हाउ मेनी एंट्रीज आर देयर। तो टोटल वाउचर्स इसके अंदर 24 है, 24 वाउचर्स आर देयर। अगर आपका लेजर चेक करना है तो जस्ट गो टू शो लेजर, आपको ये लेजर दिखाई देगा। तो दिस इज रिलेटेड पार्टी लेजर्स, तो ये आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखाई देते हैं। दिस इज वाइफ्स लेजर, दिस इज ब्रदर्स लेजर। So this can be set and you can have this related party transaction at one place। एक ही जगह पे आपको सभी रिलेटेड पार्टीज दिखाई देंगी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। फिर उसमें सिर्फ अपने को क्या करना है, वी जस्ट वांट टू चेक नेम ऑफ द ग्रुप। अगर क्रेडिटर्स में है तो उससे परचेस किया होगा, अनसेक्योर्ड लोन है तो उसको इंटरेस्ट दिया होगा। तो अपना जो शेड्यूल है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन वाला वो तुरंत फिल हो जाता है। और 269 येस एंड टी वाला जो है वो भी इसमें से फिल हो जाएगा। तो दैट कैन बी हैपन इन दिस केस। तो यहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कंपनीज एक्ट में अपने को रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देने होते हैं, तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट उनके नाम वगैरह सब आ जाएंगे। और अगर इनको आपने बोल के रखा है कि पैन नंबर इसमें डाल के रखो, तो यहाँ पे अगर पैन नंबर डाल देंगे तो पैन नंबर पे अपने को मिल जाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ऑडिट का फायदा है टैली ऑडिट में करने की वजह से। तो एक बार आपका वाउचिंग वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो जस्ट से वेरीफाइड वेरिफिकेशन पे यस कर दीजिए, तो ऑल वाउचर्स आर वेरीफाइड ऐसा ऑप्शन आ जाएगा उसमें, ऑल कंप्लीटेड। तो सबको सेटिंग हो जाएगा। अब इसमें अगर आपने कोई वाउचर चेकिंग किया हुआ है तो यहाँ पे जो आप बोलते हो कि डिस्प्ले डे बुक, डिस्प्ले डे बुक में जैसे ये 4 वाउचर है 1 अप्रैल के, F12 कीजिए, एडेड एंड एडिटेड बाय, एंटर्ड बाय एंड एडिटेड बाय का ऑप्शन यहाँ पे आता है। ओके, ऐड बाय एडिटेड बाय। तो जैसे एंटर्ड बाय रवि, एंटर्ड बाय 1, एंटर्ड बाय प्रणय। चलो इसको मैं 31 मार्च का आपको दिखाता हूँ, 31 मार्च, सॉरी, हम लोग 31 मार्च को रवि में से एक एंट्री करते हैं। मेक अ एंट्री बाय रवि, एक ट्रैवलिंग का एंट्री करते हैं हम लोग। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज। ओके, एक कैश में एंट्री कर दिया। NSDF, नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फाउंड, NSDF, नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फाउंड। 1 अप्रैल को हो गया, 31/3। अब मैं क्या करूंगा, इस एंट्री को वाउचर, अब हम लोग देखेंगे डिस्प्ले डे बुक 31 मार्च। अब 31 मार्च को ये एंट्री है ट्रैवलिंग में रवि के द्वारा की गई। ओके, दिस एंट्री इज मेड बाय रवि। अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रणय का लॉगिन करके अल्टर करता हूँ। अल्टर के चेंज यूजर, सिलेक्ट चेंज यूजर नेम, प्रणय, प्रणय। ओके, डिस्प्ले डे बुक 31 मार्च, 31 मार्च को 10,000 की एंट्री को मैं करूँगा 8,000। अब मैंने इसको किया 8,000, और एक एंट्री को मैं अल्टर कर लेता हूँ, जैसे कि ओम शांति वाली का एंट्री है 79,500, इसको करता हूँ 70,000, 70,000।
ओके, 2 एंट्रीज मैंने चेंज किया। ओके, इटसेल्फ एंटर बाय प्रणय था, तो लेट अस चेक। तो यहाँ पे ओरिएंट सीमेंट का भी एक एंट्री है, उसको 1 रुपया कर देते हैं, मेक इट 1 रुपीज। तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट एंटर्ड बाय प्रणय आ गया है। ओके, क्योंकि अल्टर्ड बाय प्रणय ऐसा आना चाहिए था, तो ये ऐसा क्यों नहीं आया? तो इसका रीजन ये है कि दैट वाउचर्स आर नॉट वेरीफाइड। डिस्प्ले डे बुक, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओरेंट की एंट्री 1 रुपीज एंटर्ड बाय आ रहा है, तो ये दिस वाउचर्स आर नॉट वेरीफाइड। वाउचिंग वेरिफिकेशन में उसको वेरीफाई का ऑप्शन दिया गया नहीं है, तो इसके लिए ऐसा आता है। तो उसको चलो एक बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम लोग। तो डिस्प्ले एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, वाउचर वेरिफिकेशन, वाउचर वेरिफिकेशन में अल्टर F2 सॉरी बिगिनिंग एंटर। तो इसमें पेमेंट की एंट्री थी, तो पेमेंट में जाएंगे, मार्च महीने में जाएंगे। तो मार्च में ये जो है यहाँ पे आपको दिखाएगा वेरिफिकेशन स्टेटस अल्टर्ड 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 एंड न्यूली क्रिएटेड, वेरिफिकेशन नोट में आएगा अल्टर्ड प्लस न्यूली क्रिएटेड। आर यू गेटिंग दिस? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे अल्टर किया गया है या क्या है वो दिखाई देता है। ओके, इज दिस ओके? अब एक प्राइम में और एक बढ़िया खासियत ऐसी है जो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद में मार्क वाउचर का आपको बताऊंगा। अगर आपके पास कंपनी ओपन नहीं है, या फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से, क्योंकि हमें देखो हर बार क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज का डेटा हमारे पास में आता है, बहुत सारे क्लाइंट हर एक के पास में है, हर एक का बहुत सारा डेटा आता है, और हर पार्टी को हमें फोन करके पूछना पड़ता है इसका आईडी पासवर्ड क्या है। तो व्हाट यू शुड डू, आपने क्या करना है कि एक आईडी और एक पासवर्ड टैली के डेटा में डालने के लिए उनको सेंड करना है। उनको बोलना है कि एज अ ओनर इस आईडी पासवर्ड को डाल के रखो। तो जब भी डेटा आपके पास में आएगा, आपको सिर्फ वो आपका आईडी पासवर्ड डालना है। क्लाइंट का आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। उसमें ओनर है, यूजर कौन है, ओनर कौन है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपको आपका आईडी और पासवर्ड क्लाइंट को बोलना है कि आपके इसमें यूजर आईडी पासवर्ड में जाके वो डाल दीजिए। अब उससे क्या होगा कि आप एक साथ में अगर 4-5 कंपनी ओपन कर रहे हो और सबके अंदर एक ही आईडी पासवर्ड है, तो मैंने पहले सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। एक ही आईडी पासवर्ड अगर है तो आपको हर बार आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं। ये प्राइम ने पहली बार लाया हुआ है कि एक ही आईडी पासवर्ड अगर आपके पास में है तो यू डू नॉट हैव टू। इसका सेटिंग होता है F1, यहाँ पे हेल्प में गो टू हेल्प सेटिंग्स, स्टार्टअप में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देखो, लॉगिन, एनेबल ऑटो लॉगिन फॉर कंपनीज विद सेम क्रेडेंशियल। मैं इसको कर देता हूँ बंद, इसको मैंने कर दिया बंद। अब मैं 1920 इसमें मेरा आईडी डाला, पासवर्ड डाला, कंपनी ओपन हो गई। अब मैं F3 दबा के नया कंपनी ओपन कर रहा हूँ 2021। अब मुझे ये वापस से आईडी पासवर्ड पूछ रहा है, मैंने वापस आईडी डाला, वापस पासवर्ड डाला। अब तीसरी कंपनी में ओपन कर रहा हूँ अगेन 2021, तो इसमें भी मैंने डाला आईडी, इसमें भी डाला पासवर्ड। अब तीनों कंपनीज को मैंने सेम आईडी और सेम पासवर्ड दिया हुआ है, बट मुझे 3 बार आईडी पासवर्ड डालना पड़ा। अब मैं तीनों को बंद कर देता हूँ और विद न्यू सेटिंग आपको बताता हूँ कैसे होता है। न्यू सेटिंग, स्टार्टअप, एनेबल ऑटो लॉगिन, यस, कंट्रोल ए, ओके, सेव कर दिया। अब मैं पहली कंपनी ओपन कर रहा हूँ, आईडी डाला, पासवर्ड डाला, कंपनी ओपन। अब F3, सिलेक्ट कंपनी, सिलेक्ट द सेकंड कंपनी, आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं। F3, सिलेक्ट कंपनी, थर्ड कंपनी, आईडी पासवर्ड की जरूरत नहीं। Did you get this? This is a wonderful feature by Tally. Okay. अब नेक्स्ट वन, ये हो गया एक चीज। अब कैसा होता है कि बहुत बार क्लाइंट का डेटा हमारे पास में आता है अब, और क्लाइंट का अकाउंटेंट हमारे पास में आइदर आके चेंजेस करता है या फिर हम लोग खुद चेंजेस कर लेते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करना है आपको, तो कुछ भी चेंजेस करने से पहले, क्लाइंट के टैली के डेटा में कुछ भी चेंजेस करने से पहले सिर्फ एक सेटिंग आपको एनेबल करनी है। यू जस्ट हैव टू टर्न ऑन वन सेटिंग फ्रॉम F11। F11 में सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है मार्क मॉडिफाइड वाउचर्स। ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट और अच्छा ऑप्शन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चेंजिंग द क्लाइंट्स डेटा इन आवर ऑफिस। अगर हम कर रहे हैं ऐसा, तो कल जाके ऐसा नहीं हो कि क्लाइंट बोले कि ये तो मुझे मालूम ही नहीं, ये तुम्हारे आदमी ने किया था, तुमने किया था, मेरे को तो मालूम ही नहीं, भले ही उसने एंट्री किया हो। तो हमने एंट्रीज कौन कौन सी की हमें मालूम होना चाहिए, इसके लिए इसको एस कर दीजिए। एक्सेप्ट, यस एक्सेप्टेड। अब इसमें मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, जैसे कि उस एंट्री जो चेंज की थी हमने पहले 8000 वाली, मैं इसको कर देता हूँ 18000, 18,000 अलाउड नहीं है, फिर भी कर देता हूँ। अब ये 1 रुपीज था, इसको कर देता हूँ 1 लाख रुपीज, या फिर 10,000। अब ये 70,000 था, तो उसको 1,70,000 कर देते हैं। इसके बाद एक सेल की एंट्री है, इस सेल की एंट्री में हम लोग थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो जैसे कि 250 बैग थे, मेक इट 500 बैग्स, एज्यूमिंग। चलो, ये 4-5 एंट्रीज हमने कर ली। अब ये कंप्लीट करने के बाद हमें वो रिपोर्ट चेक करना है मॉडिफाइड वाउचर्स का। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इसमें स्टेट अकाउंट बुक्स में है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, जस्ट a minute। ये रिपोर्ट आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट वाउचर्स नाम है, रजिस्टर्स मार्क वाउचर, सभी वाउचर्स मॉडिफाई किए। आपको क्या इसकी प्रिंट निकालनी है और क्लाइंट को भेज देना है कि मैंने ये सारे वाउचर्स एंटर किए हैं या फिर मॉडिफाई, जस्ट इट। Are you getting this point? So this is an important thing of changes data of the client, कोई भी चीज से पहले इसको कर दो। क्या हम मार्किंग वगैरह करें तो ये यहाँ से निकल जाएंगे सब। Did you get this? Now, sir. Yes, Ravi bhai. I have completed my. Now, if you have any queries, ask. देवेश की कुछ क्वेरीज है, करेंगे आरसीबी में। अरे देवेश भाई आरसीबी का नहीं क्यूरी का पूछ रहे। देवेश क्यों सर मैच देख रहे हैं? अच्छी बात है, अच्छी बात है। If anyone have queries, directly ask. Okay, yes, Abhishek Kothari, yes, Devesh sir. Okay. No queries. If anyone have... ओके, एक फीचर शायद से आपको मालूम ही होगा, लास्ट टाइम मैंने आया था और एक बार बता देता हूँ, सब लोग ध्यान दीजिए प्लीज। अभी आया है मेरे को, एक्चुअली पार्ट ऑफ ऑडिट, पार्ट ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में एक चेंज किया है अच्छा टैली ने, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बड़े वाउचर्स होते हैं हमारे पास में, बड़े डिस्प्ले अकाउंट सेल्स, सेल बिल में इसमें देखिए बहुत है। जब मैं इसको प्रिंट आउट करता हूँ और प्रीव्यू देखता हूँ तो पता चलता है कि ये लगभग 4 3 4 2 3 4 ऐसे बहुत सारे पेजेस भी निकलते हैं। यहाँ पे ऊपर जो पोर्शन होता है सेम रहता है तीनों पेजेस पे, इसीलिए बहुत सारे लोग टैग नहीं करते प्रिंटिंग के लिए, पेजेस बहुत ज्यादा जाते हैं और पहले पेज दूसरे पेज पे बहुत ज्यादा जाती है। ओके, टैली ने एक चेंज किया है इसमें। तो ऐसा है कि आप ये जो है, ये जो कम पोर्शन है, यू कैन रिमूव फ्रॉम सेकंड वर्ड्स। पहले पे टाइटल आएगा, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पेज पे नहीं आएगा। तो उसका सेट कैसे करना है, आपको कॉन्फ़िगर में जाना है। आपको जाना है कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर के अंदर मेन हेडिंग है इंफॉर्मेशन, मेन हेडिंग है। इसके अंदर एक ऑप्शन है ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग टू सेव पेपर, इसको करना है। इसको यस करने के बाद इसके नीचे वाला ऑप्शन एनेबल हो जाता है।
जिसको है चूज डिटेल तो सेकंड ऑनवर्ड्स, इसको करो यस। इस पे जितनी इंफॉर्मेशन है सब इंफॉर्मेशन नो कर डालो, नो टू ऑल, इसको नो कर दो लेकर। नाउ गो टू द प्रीव्यू और आप वो सिर्फ 2 पेजेस में आ जाएगा, उस पेजेस में आ जाएगा इन द 4। This is a beautiful picture enabled in Tally Prime. Tally Prime से e-invoicing भी निकाल सकते हो। You can on the this is very key setting is there. UPI की सेटिंग आपको करना होता है GST की वेबसाइट पे, और आपका Tally e-invoicing। Okay sir. Yes Ravi bhai, yes Ravi bhai. If anyone is having any query, they can directly ask. रवि भाई आपने सेशन अच्छे से लिया कि कोई जस्ट मिनट, अभिषेक लिखा है सर कैन यू अबाउट वेविंग, ओके नो प्रॉब्लम। अल्टर है तो वो आपको वाउचिंग वेरिफिकेशन के अंदर दिखाई देते हैं। जस्ट प्रेस F3 टू सिलेक्ट कंपनी। आपको रिपोर्ट करना है, एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन, वाउचिंग वेरिफिकेशन। जो वाउचर्स को आप वेरिफिकेशन करोगे वही अल्टर्ड में दिखाई देंगे, अदरवाइज वो दिखाई देंगे नहीं। ओके, अदरवाइज वो नहीं दिखाई देंगे। ओके, एनीथिंग एल्स? यहाँ पे देखो ऊपर ही डायरेक्टली दिखाई देता है अल्टर्ड टू बी री-वेरीफाइड। जो वाउचर वेरीफाई किए हैं वही आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, बाकी के वाउचर्स दिखाई नहीं देंगे। ओके, एनीथिंग एल्स, एनी न्यू क्वेश्चन? एक और है शायद से चैट बॉक्स में। सर कैन यू रिपीट अबाउट विंग? थैंक यू सर। ओके, अभिषेक जी सेड थैंक यू। ओके, बाकी सब लोगों को सेशन कैसा लगा प्लीज रिप्लाई मी ऑन व्हाट्सएप। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे रिप्लाई कीजिए, और यू कैन सेंड चैट इन चैट बॉक्स। यहाँ पे चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो कि आपको ये कैसा लगा। प्रशांत सर, टू यू। यस, पंकज झवर, वेरी गुड सेशन। थैंक यू सर। रवि भाई आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आज सबको समझाया है, एंड ऑन बिहाफ ऑफ वेरी इंफॉर्मेटिव सेट बाय राहुल मुंदड़ा, नाइस सेशन बाय संतोष मोटवानी। कमेंट्स आ रहा है सर काफी सारे। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। So on behalf of Jalgaon branch of WIRC, I am very much thankful to CA Ravindra Patil sir that he has explained the features of the Tally Prime and all new audit features in the Tally Prime in a very simple and very lucid manner, that it is very well understood by all the participants, and it also appreciated by the participants. So I am very thankful to the CA Ravindra Patil and all the participants who have attended the session and participated in the session. Thank you so much, Ravi bhai. Thank you to all Thank you sir for participants. giving this opportunity. I am always ready to explain what I know. Yes, Ravi bhai, thank you. आप हमेशा you are always ready for the branch. That's what I want to say. Still comments are coming like from Mahesh Makreja and from Paras Jawar. Yes, Devesh Devesh Kyusara, Kyusara, all are commenting that nice session, very informative session.
Thank The you all. purpose Thank you of for attending the session in large quantity. this is the only purpose that people or our fellow colleagues should get benefit from all these sessions. So that's what we expect. And also in the continuing series on Tuesday, there will be session from Mr. Bhushan Gadia. On Wednesday, there will be session from Mr. Devish Kyusara. And last but not least, on Friday, there will be session from Mr. Parth from Nagpur. He is also a engineer and also chartered accountant. So don't miss all the sessions. All sessions are very good. So please do attend. And on Thursday, we have a very good different workshop from CA Umesh Sharma sir. And he will be taking on the management in practice. So please do attend. I request all to please do attend. Thank you. Thank you very much. Thank you, Ravi Bhai. Thank you, sir.